Good morning, everyone. It is my great pleasure to welcome a very warm and heartfelt welcome to our esteemed faculty members, distinguished speakers, and all my dear friends. Today, we have gathered for an inspiring session on development of entrepreneurship opportunities from VLSI Design, organized by the Department of Electronics and Communication Engineering, IES IPS Academy. We are truly honored to our respected speaker with us today, whose knowledge and experience will undoubtedly inspire all of us all to think beyond conventional career paths and explore the world of innovation and entrepreneurship. Dr. Vaibhav Niva. He is a professor at IET specializing in microelectronics, VLSI design, semiconductor technology, and AI hardware systems. He has published 120 plus research papers, holds 2 granted patents, and leads the Advantage VLSI Lab and MTech program in microelectronics and VLSI design. Under his leadership, DAVV developed an indigenous semiconductor chip showcased at Semicon India 2024 while securing rupees 1 plus crore in research funding through national semiconductor initiatives. He has received the Nai Dunya Icon Award 2025 and several honors for advancing semiconductor research and innovation in India. On behalf of the Department of Electronics and Communication Engineering and the entire IES IPS Academy family, I extend a sincere welcome to our esteemed guests, respected faculty members, and my dear friends. I would now like to request Dr. Rupesh Dubey sir to graciously join us on the stage and present the sapling to our distinguished guests. Let's welcome them with a warm round of applause. Actually, my session, my speaking was not at all what you call as part of this program. But then too, for the clarity of the students, I would state over here is this, that Vaibhav Nima sir is a very senior professor at IIT DAVV. And we are there part of a C2S program. Along with that, IIT DAVV is also part of C2S program. But they are at a very larger front end. They have crossed a great leap. Introducing Vaibhav Nima sir, although all those technical introduction has been done, but there are many faculty of our institute who has been taught by Vaibhav Nima sir. So this is his introduction, including Kavita madam, she has raised her hand, and Poonam madam also. Fine. So this is the personality we are having right now. Actually, see, this program to you, sir, these are the nested student of second year, third year, and final year, all belong to Electronics and Communication Engineering BTech degree program. Now, the scenario is this, that to larger extent, the second year reads in the electronic devices and circuits, digital electronics. Third year reads a little more advanced, that is comes up under VLSI category. The final year has read all those subjects which you require. And the scene is like this, that these students want a good insight from the cadence and synopsis point of view. And that viewpoint only, this workshop has been planned. It will be a 4 days workshop, wherein over here we will be having theory session. We'll have a break at 1:30 approx, fine. And thereafter we will recollect, and we will continue this workshop at 3 through 3:30 p.m. Today, this will be a more or less a theory clubbed by some videos that sir will be showing some of his experiences. He also requested me to give board also, so this screen is there for a board, so he would like to address some of the issues by his hands also. So this is the way this particular workshop is planned. Thereafter, we will go to C2S laboratory of IIT DAVV, which is in collaboration with IIT Indore, MCT, Mahu, and many other parts. So the scene will be like this. We will go over there by 2 p.m. tomorrow, and we will get engaged by 6 p.m. I suppose, sir. And over there, the technology people will be dealing with you. You will get hands-on over there. And I request all the students kindly take a maximum advantage of the situation. For the next 2 days, we will be having some other experts who will be coming, and he will also take some theory and thereafter practical sessions. So that way we will complete our entire scene.
So over to you, sir. Thanks. Please. सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। और रुपेश सर ने हम लोगों ने काफ़ी काम किया साथ में। हाँ, वैसा कुछ बड़ा काम नहीं किया हम लोगों ने भी, जो कर रहे हैं वो अच्छे से कर रहे हैं। बस यही है कि हमारा एक मतलब शुरू से मेरा ड्रीम था कि हमें चिप बनानी है, बस ये ड्रीम था। शुरू से लेके चले थे हम, जब एमएससी में थे, जब फिर एमटेक आया, फिर इंदौर आ गए, देखा क्या होता है। पर फॉर्चुनेटली हमें C2S प्रोजेक्ट मिला। C2S प्रोजेक्ट आपके यहाँ पे जो हमें मिला, हमें टूल्स के एक्सेस मिले, टूल्स लर्न किए, फाउंड्रीज इनेबल हुई। अब ये सब टर्मिनोलॉजीज है जो हम समझेंगे। विल ट्राई टू लर्न दिस टर्मिनोलॉजीज की फाउंड्रीज क्या होता है, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, VLSI क्या होता है ना। तो सबसे पहले पैशनेटिंग जो है बच्चों के लिए वो ये है, क्योंकि हम सब किसके लिए पढ़ रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस जॉब। तो क्या क्या फील्ड्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि हम भी जब हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करते हैं, VLSI की बात करते हैं, तो सबसे पहला वर्ड बच्चों के लिए ये होता है कि सर जॉब्स कहाँ हैं, जहाँ जॉब्स होंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमें क्या पढ़ना चाहिए, व्हाट इंडस्ट्री डिमांड्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, कि हमें क्या पता होना चाहिए, हमें क्या लर्न करना है ताकि हम जॉब ले पाएँ इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे डेटाज आ रहे हैं कि ना इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो सेमीकंडक्टर बहुत बूम पे है। और जो अभी का जो डेटा है इज़ ऑफ 26-27 का, कि इन इंडिया जो सिनेरियो चल रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट वी रिक्वायर्ड अराउंड 3 lakhs ऑफ स्किल्ड मैन पावर इन VLSI इंडस्ट्री, इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। एंड आप सभी को पता होगा, जिससे अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो गुजरात में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अभी थोड़े दिन पहले इंदौर में बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ, पारस सेमीकंडक्टर्स है, पारस डिफेंस सेमीकंडक्टर्स हैं, नॉट इन इंदौर, इट इज़ ऑन मिडवे बिटवीन देवास एंड उज्जैन के बीच में बड़ा लैंड मिला है उनको। एंड दे आर इन्वेस्टिंग अराउंड 6,000 crore रुपीज़। एंड द मेन आस्पेक्ट ऑफ पारस सेमीकंडक्टर, बहुत पुरानी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस के लिए काम करती है। और मेनली जो प्लांट बन रहा है इंदौर में, दैट इज़ फॉर 3D पैकेजिंग, 3D और 5D पैकेजिंग के लिए प्लांट वो ऑपरेशंस में ला रहे हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, अगर आपने सुना होगा नाम तो माइक्रॉन है, यू हर्ड दिस नेम, माइक्रॉन। माइक्रॉन इज़ ऑल्सो देयर। माइक्रॉन इज़ मेनली फेमस फॉर what प्रोडक्ट? माइक्रॉन इज़ मेनली फेमस फॉर रैम मेमोरीज। तो माइक्रॉन इज़ मेनली फॉर द मेमोरीज डिज़ाइनिंग। और अभी माइक्रॉन के पास ये दिक्कत है कि माइक्रॉन इज़ नाउ शिफ्टेड, मतलब अभी अगर हम देखेंगे तो मोबाइल के प्राइजेस, हमने अभी सर्वर खरीदा, तो सर्वर का प्राइस जो है वो अराउंड मुश्किल से 15 दिन में 3 लाख से 4 लाख रुपए बढ़ गया, बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ मेमोरी। मेमोरी नहीं है, किसी के पास मेमोरी नहीं है, क्योंकि मेमोरी में जो लीडिंग कंपनी है माइक्रॉन, और माइक्रॉन पूरा कैप्चर कर रखा है। TSMC ने जो आने वाले GPUs हैं, GPUs के लिए, TPUs के लिए जो मेमोरीज डिज़ाइन कर रही हैं, तो माइक्रॉन का पूरा प्लांट ही उन्होंने कैप्चर कर लिया है। तो नाउ मेमोरी अगर आप आज देखने जाएंगे, तो हम स्कैन डिस्क की पेन ड्राइव लेने जाते थे थोड़े दिन पहले, 6 महीने पहले, इट इज़ वेरी चीपर, और अब उसका कॉस्ट 2 या 3 गुना बढ़ गया। रैम मेमोरीज हमने लास्ट टाइम खरीदा था, 32 GB का रैम खरीदा था, इट इज़ ऑफ अराउंड 3,000-4,000 रुपीज़, आपको 12,000 में भी नहीं मिल रहा है। तो इट इज़ वेरी मीन्स चैलेंजिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री कि हम क्या करें, कैसे करें, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री इज़ डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर प्लेयर्स पे डिपेंड कर रही है। तो उसको वर्सेटाइल करना है, अलग अलग फैलाना है। तो उसके लिए इंडिया में बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं और बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं, और उसमें आपका भी एक रोल हो सकता है, इफ़ यू लर्न और इफ़ यू हैव एक्सपर्टीज़ इन दिस एरिया। आज हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो विल इंट्रोड्यूस कि व्हाट इज़ VLSI, हम पहले समझने की कोशिश करेंगे VLSI है क्या। बहुत सारे बच्चों में, सभी में कन्फ्यूजन यही है, जहाँ पे मैं लेक्चर लेने जाता हूँ कि VLSI है क्या, हमें तो समझ में नहीं आया। सेमीकंडक्टर का बहुत नाम सुन लिया, पर VLSI क्या है, कैसे बनाना है, क्या करना है, विल लर्न दैट ऑल्सो। तो एनीबडी नो व्हाट इज़ VLSI, व्हाट इज़ सेमीकंडक्टर, और व्हाट इज़ द प्रॉस्पेक्ट ऑफ सेमीकंडक्टर, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ सेमीकंडक्टर इन इंडिया, क्या फ्यूचर होने वाला है, क्या आने वाली हैं, क्या चीज़ें हैं सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ। अच्छा, विच इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन सेमीकंडक्टर, कौन सी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर बनाती है, चिप बनाती है? अगर हम बहुत सिंपल बात करें तो इंटेल और एनवीडिया और गूगल, सारे नाम ले सकते हैं हम पर सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर चिप इज ऑफ TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज इन ताइवान। और 75% जो चिप बनती है सब में, दैट इज़ टू बी फ्रॉम ताइवान ओनली। ताइवान इज़ नो, यू नो द ताइवान, हाँ, ताइवान क्या है, कंट्री है। एंड यू नो दैट द ताइवान वॉर इज़ ऑल्सो देयर, द चाइना इज़ ऑक्यूपाइंग द ताइवान, अमेरिका उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है? बिकॉज ऑफ दिस ओनली, कि उसके पास वर्ल्ड की सबसे बड़ी फाउंड्री है, इट इज़ टू बी अ ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी।
और वो इंडिया पूरे वर्ल्ड का 75% जो मैन्युफैक्चरिंग होता है सेमीकंडक्टर वो करती है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग की बात हुई। ऐसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज जो हमें पता होना चाहिए जब हम वेलेसाई इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। एक हम बोलते हैं फैब लैब, फैब्रिकेशन लैब। तो ताइवान TSMC इज़ अबाउट द फैब लैब्स। अगर हम और फैब लैब्स की बात करें तो फैब लैब्स इज़ ऑल्सो देयर फॉर इंटेल की फैब लैब्स भी हैं, सैमसंग की फैब लैब्स भी हैं, माइक्रॉन की फैब लैब्स भी हैं। अब एक कंपनी इंडिया में आ रही है दैट इज़ टू बी CG पावर। CG पावर का नाम सुना है, नहीं सुना होगा आपने। CG पावर इज़ एक कंपनी है जो कि मारुति सुजुकी की जो ई व्हीकल्स आ रही हैं उनकी जो चिप है वो सारी मैन्युफैक्चरिंग करेगी CG पावर। टाटा सुना है आपने? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम सुना है? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ लोकेटेड है? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एट धोलेरा, गुजरात। बहुत बड़ा प्लांट आ रहा है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का। और दे आर ऑल्सो क्रिएटिंग अ फैसिलिटी टू फैब्रिकेट देयर ओन चिप्स फॉर ई व्हीकल्स। जो अभी नया ज़माना है ई व्हीकल्स का। अभी मैं आपको थोड़े दिन पहले की स्टोरी बताता हूँ। इट्स अराउंड मुश्किल से 3 या 4 महीने हुआ होगा। मेरे एक फ्रेंड के साथ हम गए कार बुक करने के लिए। तो हमने पूछा उससे कि कार किया की कार थी। तो उससे बोला कि सर अराउंड 6 से 7 महीने का वेटिंग है कार में। तो हमने ऐसे क्यूरियोसिटी से पूछा कि वेटिंग क्यों है? मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत ईजी है, कार बनाना मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो उसने बोला कि सर आपको कार चाहिए तो मैं कल दे देता हूँ आपको कार। मेरे पास कार रखी पर उसमें इन्फॉर्मेटिव सिस्टम नहीं है, GPS वगैरह आपका कुछ नहीं चलेगा। तो ऐसी कार आपको चाहिए तो मैं कल आपको डिलीवर करता हूँ। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ कि आपके पास चिप पे? बोले सर जो चिप सप्लायर है वो सप्लाई नहीं कर रहा है। तो हमारी कार जो बन के भी खड़ी है वो सब ऐसी खड़ी है जिसमें इन्फॉर्मेटिव सिस्टम नहीं है। तो अगर ऐसी कार कोई लेना चाहे तो ले ला, आप लोग लोगे? ऐसी कार नहीं लोगे। तो पूरी इंडस्ट्री कहाँ पे आके रुक गई? चिप पे। तो चिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चिप फैब्रिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने बताया कि TSMC सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है। ऐसे अगर हम प्रोडक्ट वाइज देखें तो हु इज़ द लार्जेस्ट प्रोडक्ट कंपनी इन दिस सेमीकंडक्टर बात कर लो, चिप की बात कर लो। फैब अलग होता है, प्रोडक्ट अलग होता है। व्हाट इज़ प्रोडक्ट? प्रोडक्ट मतलब ये मोबाइल हो गया। तो आपको क्या लगता है सबसे बड़ा अभी प्रोडक्ट कौन डिज़ाइन कर रहा होगा सबसे ज़्यादा? कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट आप देख रहे हैं चिप्स वगैरह जो बहुत अग्रेसिवली काम कर रहे हैं? कॉलकॉम देख सकते हैं। ओके, ये कंपनीज के नाम तो हमें समझ में आए, एनवीडिया, कॉलकॉम और इंटेल और बताइए। एप्पल, गुड। और गूगल इज ऑल्सो इन इज VLSI कंपनीज। पता है वो गूगल में है। गूगल इज मेनली फॉर देयर डेटा सेंटर्स। गूगल के अपने खुद के डेटा सेंटर्स हैं एंड दे आर इट्स ओन फैब्रिकेटिंग अ प्रोसेसर विच इज़ यूज फॉर द TPUs, जिसको बोलते हैं टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स। TPUs are mainly made or designed for the data centers by Google only. You know Microsoft, Intel, L&T, Infosys, Tata, सारी कंपनीज now shift हो रही है towards the semiconductor because they wants their own semiconductors. पर सेमीकंडक्टर बनाना बहुत मुश्किल है तो they design to be a design centers. तो अगर हम VLSI इंडस्ट्री के वर्टिकल्स देखें कि 4 बड़े क्या पार्ट्स हैं, तो सबसे बड़ा जो पार्ट है उसको बोलते हैं डिज़ाइन हाउस, उसको बोलते हैं फैबलेस। जो फैब नहीं करते हैं, जो फैब्रिकेशन नहीं करते, वो क्या करते हैं? केवल डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन हाउसेस होते हैं जो डिज़ाइन करते हैं। चिप डिज़ाइनिंग का अगर इंडिया में देखें तो ऐसा कोई कंपनी नहीं जिसका चिप डिज़ाइन का हाउस नहीं हो। सारी कंपनीज, क्वालकॉम से लेके सब बड़ी कंपनीज, एनवीडिया तक का हमारे पास डिज़ाइन हाउसेज हैं। तो इंडिया इज़ मेनली फेमस फॉर डिज़ाइनिंग ऑफ चिप, नॉट फैब्रिकेशन ऑफ चिप। फैब्रिकेशन के लिए अभी भी हम डिपेंडेंट है ताइवान पे। बहुत सारी अलग, कोरिया में अच्छा फैब्रिकेशन है, कोरिया में बहुत अच्छा है, इंडोनेशिया है, ताइवान है, मलेशिया है, सिंगापुर है। जितनी कंट्रीज़ हैं हमारे पास नेबरिंग, वो सारी कंपनीज फैब्रिकेशन करती है। वियतनाम इज़ ऑल्सो गुड फैब्रिकेटेड फैसिलिटीज़ ऑल्सो देयर, बट इंडिया में कोई फैब्रिकेशन फैसिलिटी नहीं है। नाउ वी आर क्रिएटिंग द फैब्रिकेशन फैसिलिटीज़ ऑल्सो। तो इंडिया भी एक इकोसिस्टम बनना है, क्योंकि हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं, मान लीजिए अभी तो हम कार के लिए बात कर रहे हैं, पर अगर हम आगे वाले टाइम में अगर हम 5th जनरेशन अपना खुद का एयरक्राफ्ट जनरेशन बनाना चाह रहे हैं और मान लीजिए उस एयरक्राफ्ट की चिप हम चाइना से बनवा रहे हैं, तो कितना आप भरोसा करोगे कि वो हमारा फ्लाइटर जेट है चलेगा? तो इकोसिस्टम डेवलप करना है, कंप्लीट इकोसिस्टम होना चाहिए। तो उस इकोसिस्टम के लिए इंडस्ट्रीज़, गवर्नमेंट भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही हैं। तो अगर हम वापस से बात करें वर्टिकल्स की, तो एक बोलता है डिज़ाइन हाउस, जिसको बोलते हैं फैबलेस फैसिलिटीज़। सारे डिज़ाइन हाउसेज हैं हमारे इंडिया में। सबसे बड़े जो डिज़ाइन हाउसेज जो सर ने बताया, कैडेंस एंड सिनॉप्सिस सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले EDA टूल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन ऑटोमेशन टूल्स हैं फॉर VLSI इंडस्ट्रीज़ के लिए। कैडेंस एंड
सिनॉप्सिस, उसके अलावा सीमेंस का एक टूल आ गया है, सीमेंस इज ऑल्सो देयर। तो 3-4 कंपनीज हैं जिनके टूल्स हैं। अगर हमें डिज़ाइन इंजीनियर बनना है तो हमें ये टूल्स सीखना पड़ेंगे। ये टूल्स की आपको पता होना चाहिए कि टूल्स कैसे, टूल्स मतलब समझते हैं सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर हैं, GUI बहुत अच्छा आ गया है इनका, पर ये सारे टूल्स जो हैं वो कोई GUI बेस्ड टूल नहीं है, ये सारे कमांड बेस्ड टूल्स हैं। तो ये सारे लिनक्स बेस्ड टूल्स हैं, सारे कमांड बेस्ड टूल्स हैं, तो वहीं आके हम थोड़ा सा रुक जाते हैं। तो अब हम कुछ लिनक्स, अब बहुत सारे टूल्स जैसे कैडेंस का कुछ टूल है वो थोड़ा सा अच्छा आ गया है, उसका GUI थोड़ा ठीक है, बहुत ज़्यादा कमांड्स लिखनी पड़ती है, आपको CHS करना है और सोर्स करना है। CHS सोर्स करेंगे तो आपको उस फोल्डर में चले जाते हैं, पर हमारे समय तो आपको बहुत सारी कमांड लिखनी पड़ती थी। या टू ओपन अ टर्मिनल में बहुत सारी कमांड लिखेंगे तब हम जाके वो टूल्स को इन्वोक ही कर पाते थे। तो अभी तक हमारे लिए डिज़ाइन, हमारे पोर्शन के लिए, मतलब हमारे लिए, मतलब मैं सभी की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन वाले एरियाज़ के लिए टूल्स भी सीखना बहुत डिफिकल्ट था। क्योंकि एक तो सबसे बड़ा बात है कि टूल की अवेलेबिलिटी होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टूल्स आर सो कॉस्टली। अगर हम बात करें हमारे कॉलेज की, तो हमारे कॉलेज में 3 साल का लाइसेंस मिलता है करीबन 15 लाख रुपए में, 15 लाख रुपीज़, वो भी एकेडमिक पर्पज़ के लिए। और अगर हम इंडस्ट्री पर्पज़ के लिए जाएंगे तो इट इज़ अराउंड टू बी ₹1 करोड़। फिर उस सॉफ्टवेयर के लिए इंस्टॉलेशन, सर्वर, क्लाइंट मशीन चाहिए। तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेके वो सारे सॉफ्टवेयर फ्री कर दिया। सारे जो जितने C2S प्रोजेक्ट में हैं उन सबको फ्री सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं, तो वी कैन लर्न दैट सॉफ्टवेयर ऑल्सो। तो कैडेंस हम कल जो वर्कशॉप करेंगे, जो हमारी IIT में वर्कशॉप होगी, उसमें कैडेंस पे वर्कशॉप करेंगे। रियल जो चिप डिज़ाइन किया है हमने खुद ने, IIT ने खुद फैब्रिकेट भी किया है अपना खुद का चिप। हमने अभी तक 5 चिप फैब्रिकेट किए हैं, हम बताएंगे आपको क्या क्या चिप फैब्रिकेट किए हैं, क्या फैब्रिकेशन करना है, कैसे प्रोसेस करना है, कैसे हम फैब्रिकेट करते हैं, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए, वो सारी चीज़ हम हैंड्स ऑन कल करेंगे वहाँ पे। हमारे पास लिमिटेड 15 सिस्टम्स हैं, पर हम अकोमोडेट करेंगे 30 स्टूडेंट्स को कर सकते, एक सिस्टम में 2-2 बच्चों को हम कर देंगे अकोमोडेट। तो जो भी आना चाहे कल प्रैक्टिकल सेशन वहाँ करेंगे। आज हम थ्योरी सेशन में थोड़ा सा बात करने की कोशिश, थोड़ा समझने की, इस इंडस्ट्रीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो इट इज़ नॉट लेक्चर काइंड ऑफ थिंग कि मैं आपको लिखाऊं कि A+B = C हो गया और 1+1 = 3 हो गया, 2 हो गया, कुछ भी हो गया, ये मैं कुछ सिखाने पर। हम आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री क्या है और हम खुद क्या करना चाह रहे हैं, मेरा क्या इंटरेस्ट है। अगर मुझे कोई नहीं बताता कि चिप बनती है या चिप VLSI है या सेमीकंडक्टर है, तो मुझे भी नहीं पता लगता। जब हम भी MP से बाहर गए, जब मैं अपना M.Tech करने गया चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में सबसे बड़ी फैब्रिकेशन लैब है इंडिया की। कोई किसी को पता है कौन सी लैब है फैब्रिकेशन लैब? SCL इज़ ओनली द फैब्रिकेशन लैब इन इंडिया। सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड इज़ ओनली द फैब्रिकेशन लैब इन इंडिया विच इज़ फैब्रिकेटिंग। बहुत साल तक तो बंद रही, पर अभी वापस से गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, तो नाउ इट इज़ इन रनिंग मोड। और हमने अपने 5 फैब्रिकेशन किए हैं, वो HCL चंडीगढ़ के साथ किया। इवन दो दे आर यूजिंग द टेक्नोलॉजीज विच इज़ फार बिहाइंड। 180 नैनोमीटर्स की हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, और जो करंट मोबाइल फ़ोन में टेक्नोलॉजी, इट इज़ टू बी 3 नैनोमीटर्स टेक्नोलॉजीज। बहुत पीछे हैं, पर हम राइट ट्रैक पे हैं। हम पीछे का सीखेंगे तब आगे बढ़ जाएंगे। आज की इंडस्ट्री कोई सोचे कि मैं कल 2 नैनोमीटर का कोई प्लांट लगा दूं, तो जितना इंडिया की GDP उतना तो हमारा उतना ही खर्च हो जाएगा प्लांट लगाने में, इतना हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो हमने अभी शुरू किया है 180 नैनोमीटर से, फिर 130 नैनोमीटर, फिर 65 नैनोमीटर्स, 22 नैनोमीटर्स इज सफिशिएंट। कार में हमें 2 नैनोमीटर्स की कोई चिप नहीं चाहिए। कार में मेरे पास बहुत स्पेस है चिप लगाने के लिए। जब 4 लोग तो बिठाना ही ना, मुझे एक आदमी के लिए कार थोड़ी बनाऊंगा मैं, तो उन चारों के लिए स्पेस की क्रिएट करना, तो मैं इजीली इलेक्ट्रॉनिक्स तो कहीं भी फिट कर दूंगा। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वैसे भी EV व्हीकल्स हैं, तो कोई ना तो इंजन चाहिए ना कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, बैटरी चाहिए, मोटर चाहिए और उसके कंट्रोलर चाहिए। तो अगर हम चिप फैब्रिकेशन की बात, जैसे हम वर्टिकल्स की बात करें, तो एक हो गया हमारा E-Fabless। तो आप डिज़ाइन हाउसेज हैं बहुत सारे। तो जो फर्स्ट जॉब हमने बताया कि RTL डिज़ाइन इंजीनियर, वेरिफिकेशन इंजीनियर, फिजिकल डिज़ाइन इंजीनियर, DFT, एनालॉग, एम्बेडेड, ये सब डिज़ाइन इंजीनियर्स के जॉब है, इसमें कोई फैब्रिकेशन का जॉब नहीं है। मतलब डिज़ाइन इंजीनियर के लिए क्या नहीं, अब डिज़ाइन इंजीनियर इतने तरीके के डिज़ाइन, कितने 15 तरीके के डिज़ाइन इंजीनियर्स हैं। अब 15 तरीके के डिज़ाइन इंजीनियर के लिए अलग अलग स्किल्स आनी चाहिए। आपको क्या स्किल्स आनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, मेरी क्या स्किल्स आनी चाहिए। जो बेसिक हम डिजिटल या हम वेरिफिकेशन इंजीनियर की बात करते हैं, जिसको बहुत मिनिमम, सबसे जो मिनिमम पैकेज है VLSI इंडस्ट्री में, वो है वेरिफिकेशन इंजीनियर का। इट इज़ अराउंड टू बी, मेरे अंदाज से 3 लाख 6, हाँ यहाँ पे दे रखा है। ये सब IITs के पैकेज हैं, हम IITs के पैकेज की तरफ नहीं जाए, पर वेरिफिकेशन इंजीनियर के लिए जो जॉब है वो 6 to 12 लाख है। MP के लिए वो जॉब जो हमारे यहाँ IIT में इंडस्ट्रीज आती है, इट इज़ टू बी 4.8 से लेकर 7.8 तक का जॉब मिलता है। सबसे लोएस्ट कैटेगरी का जॉब, मतलब लोएस्ट मतलब सबसे अच्छा जॉब है, ग्रोथ बहुत फास्ट है, इट इज़ वेरिफिकेशन इंजीनियर। पर हर इंडस्ट्री को वेरिफिकेशन इंजीनियर चाहिए, क्योंकि जब भी चिप बन के आएगी तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो वेरिफिकेशन इंजीनियर चाहिए। DFT वेरिफिकेशन होता है, डिज़ाइन फॉर टेस्ट होता है, डिज़ाइन फॉर बिल्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें। तो अगर आपको वेरिफिकेशन इंजीनियर सबसे ईजी जॉब चाहिए, जिसमें हम सबसे लोअर की जगह, हम गलत वर्ड यूज़ किया मैंने, सबसे ईजी जॉब जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड है अभी VLSI इंडस्ट्री में, वो है वेरिफिकेशन इंजीनियर। क्योंकि हमारे पास डिज़ाइन हाउसेज हैं, तो जितनी चिप डिज़ाइन होगी उतनी चिप को वेरीफाई भी करना पड़ेगा आपको।
डिज़ाइन के लिए कम लोग चाहिए, क्योंकि एक बार डिज़ाइन बन गया उसको वेरीफाई बार बार, हमें उसको बार बार डिज़ाइन नहीं करना पड़ता, जब पर चिप बनी है तो उसको वेरीफाई बार बार करना पड़ता है मुझे, सैम्पल्स को लेके बार बार। तो वेरिफिकेशन इंजीनियर सबसे ज़्यादा चाहिए, और वेरिफिकेशन इंजीनियर के लिए आपके 2 स्किल्स आनी चाहिए। अगर आपका डिजिटल वेरिफिकेशन इंजीनियर बनना है तो आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा आना चाहिए, और एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। यू हर्ड अबाउट द वेरीलॉग, सिस्टम वेरीलॉग, तो अगर आपको वेरीलॉग, सिस्टम वेरीलॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आता है तो आपके लिए सबसे ईजी जॉब रहेगा फॉर द वेरिफिकेशन इंजीनियर के लिए, सबसे ईजी जॉब। ग्रोथ भी, अगर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट देखिए, उन्होंने लिखा है कि अगर आप 6 से 7 साल टिक जाए उस इंडस्ट्री में तो इट्स अराउंड टू बी 32 to 60 LPM का जॉब आपको मिल सकता है। हमारा एक स्टूडेंट है, बहुत पुराना हो गया, इट्स नाउ मेरे अंदर से 2013 का पास आउट है, आज तो ऑलमोस्ट 13 ईयर्स हो गए। नाउ ही इज़ वर्किंग अ वेरिफिकेशन इंजीनियर इन एप्पल कंपनी, US में एप्पल में काम कर रहा है। ही इज़ वर्किंग ऑन RTL वेरिफिकेशन इंजीनियर, और उसका पैकेज तो इससे बहुत ज़्यादा है, इट इज़ बहुत कम लिखा है यहाँ तो अब वेरिफिकेशन इंजीनियर ऐसा भी नहीं है, बहुत जगह है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वेरिफिकेशन इंजीनियर आप कर सकते हैं। फिर इनमें से कौन सा वर्ड आपने और सुना है? हैव यू हर्ड दिस वर्ड एनालॉग एंड मिक्स सिग्नल? एनालॉग सिग्नल पढ़ा है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हो। तो अभी जो डिमांड है, जो सबसे बड़ी डिमांड है, सबसे अच्छी डिमांड है, वो है एनालॉग डिज़ाइन इंजीनियर्स की। पर उसके लिए आपको 5 सब्जेक्ट आने चाहिए। हम बताते हैं कि उनको 5 सब्जेक्ट आना चाहिए। उनको सबसे पहले तो नेटवर्क एनालिसिस आना चाहिए, कंट्रोल सिस्टम आना चाहिए, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आना चाहिए, CMOS एनालॉग डिज़ाइन आना चाहिए, और कंप्यूटर आर्किटेक्चर आना चाहिए। अगर ये 5 सब्जेक्ट आपको आता है तो यू कैन बी अ एनालॉग इंजीनियर। और एनालॉग इंजीनियर की जॉब बहुत कम है, पर बहुत हाईएस्ट पैकेज जॉब हैं। सबसे ज़्यादा जॉब जो है वो सबसे ज़्यादा, बस सबसे अच्छा हाई कैटेगरी के जो जॉब माने जाते हैं वो इट इज़ टू बी एनालॉग डिज़ाइन इंजीनियर। अगर किसी को एनालॉग डिज़ाइन इंजीनियर का जॉब मिल गया तो उसकी लाइफ पूरी सेट हो गई, हम मानते हैं। क्योंकि एनालॉग डिज़ाइन इंजीनियर की कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ना इज़ वेरी डिफिकल्ट नाउ। पहले तो लोग पकड़ कर लेते थे, पर अभी बहुत डिफिकल्ट हैं। और हम ऑल इंडिया, अपने पूरे इंडिया की प्रॉस्पेक्ट में देखें, सबसे अच्छा जो डिज़ाइन हाउस है एनालॉग डिज़ाइन के लिए है वो है इट इज़ टू बी IIT मद्रास। IIT मद्रास के 2-3 सर हैं जो एनालॉग डिज़ाइन इंजीनियर हैं, जिनके खुद के ऑपएम्प हैं और वर्ल्ड में फेमस है दोनों। तो खुद एनालॉग डिज़ाइन इंजीनियर्स हैं, उन्होंने ऑपएम्प डिज़ाइन कर रखा है। एक ऑपएम्प पे काम करते हैं, एक DAC पे काम करते हैं, डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स। शांति पवन का नाम सुनेंगे कभी, आप सर्च करिएगा, शांति पवन IIT मद्रास, आप सर्च करिए। वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड रिनाउंड हैं, उनसे अच्छा कोई मॉडल बना ही नहीं सकता DAC AC का। तो अभी जितनी इंडस्ट्रीज़ ADC DAC बनाती है, हर सिस्टम में आपको DAC ADC चाहिए। DAC ADC मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। आजकल जितना भी हो रहा है सब में DAC AC चाहिए आपको, DAC और ADC चाहिए। तो DAC ADC के लिए जो बॉन्ड नेम है इट इज़ टू बी शांति पवन। शांति पवन सर बहुत अच्छा काम करते, बहुत अच्छे उनके लेक्चर्स भी हैं, यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं, उनकी क्लासेज हैं। अभी तो उन्होंने कोर्स भी शुरू किया उनका खुद का डिज़ाइन इंजीनियर का। तो अगर किसी को एनालॉग में जो कोई पैशनेटिंग है फॉर द सर्किट डिज़ाइनिंग के, सर्किट क्या बनते हैं, ऑपएम्प कैसे डिज़ाइन होता है, वेवफॉर्म कैसे जनरेट होती है, तो आप एनालॉग डिज़ाइन इंजीनियर की तरफ भी काम कर सकते हो। तो ये डिज़ाइन इंजीनियर्स की बात हो गई, डिजिटल डिज़ाइन इंजीनियर, एनालॉग डिज़ाइन इंजीनियर, वेरिफिकेशन इंजीनियर। फिर सबसे लास्ट में पैकेज इंजीनियर, हम पैकेज की बात में करेंगे। फिर लेआउट डिज़ाइन इंजीनियर होते हैं, लेआउट की बात कल करेंगे क्योंकि हमें समझ में आ गया कि लेआउट होता क्या है जनरली, तो विल सी दैट ऑल्सो। तो एक वर्टिकल हो गया डिज़ाइन हाउस, दूसरा वर्टिकल हो गया हमारा फैब्रिकेशन हाउस। आपने डिज़ाइन कर दिया चिप, अब वो चिप फैब्रिकेट करना है हमको। तो अब जैसे हमारे इंडिया में डिमांड होने लग गई फैब्रिकेशन इंजीनियर्स की भी, क्योंकि अब फैब्रिकेशन यूनिट आने वाली है, अब आने वाली है और आ भी रही है, बहुत सारी फैब्रिकेशन यूनिट आ गई हैं। जैसे CG पावर की आ गई, टाटा की आ गई हैं, माइक्रॉन की आ गई है, PSMC की एक यूनिट आ रही है, मेदांता की आ रही है। तो बहुत सारी फैब्रिकेशन यूनिट्स भी आने वाली है, तो इसमें भी बहुत अच्छी डिमांड्स होने वाली हैं। तो दैट स्किल, वहाँ पे हमें स्किल्स, अगर हम फैब्रिकेशन इंजीनियर की बात करें तो फैब्रिकेशन इंजीनियर के लिए जो स्किल्स चाहिए वो सेमीकंडक्टर का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स पता होना चाहिए। थोड़ा केमिकल लगता है तो उसमें केमिकल इंजीनियर चाहिए, थोड़ा मैकेनिकल लगता है थोड़ा मैकेनिकल का फ्लेवर होना चाहिए। अगर ये 3 फ्लेवर आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं तो यू कैन गो विद द फैब्रिकेशन इंजीनियर ऑल्सो। डिज़ाइन हो गया, फैब्रिकेट हो गया, अब क्या करें, उसको पैकेज करें। पैकेज करें मतलब उसको हम किसी पैकेज में फिट करें। जैसे पैकेज मतलब समझते हैं व्हाट इज़ पैकेजिंग, मोबाइल भी पैकेज में है। इसके अगर इसको खोल देंगे पूरे कवर को तो एक पैकेज लगा हुआ पीछे, जिसको बोलते हैं SOC, सिस्टम ऑन चिप। तो अब उसको पैकेज करें, तो पैकेज करना भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग जॉब है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं आपको बताया, जो पारस सेमीकंडक्टर है वो स्पेशली पैकेजिंग करता है, 3D और 5D पैकेजिंग करता है, और वो डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ में वर्क करते हैं। तो मेनली दे आर फोकस्ड ऑन डिफेंस टेक्नोलॉजीज 5D और पैकेज में। तो एक इंजीनियर होता है दैट इज़ टू बी पैकेज इंजीनियर। तो हमारे पास 3 वर्टिकल्स हैं अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है, 1 इज़ डिज़ाइन हाउस, सेकंड इज़ फैब्रिकेशन हाउस और 3rd इज़ पैकेज इंजीनियर्स। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा इंजीनियर दैट इज़ टू बी आर्किटेक्चर डिज़ाइन इंजीनियर। वो बहुत रेयर होते हैं पर वो भी है, इसमें लिखा होगा आर्किटेक्चर डिज़ाइन इंजीनियर, प्रोडक्ट इंजीनियर, पावर लेआउट्स, इस पर नहीं लिखा। तो आर्किटेक्चर डिज़ाइन इंजीनियर, चिप डेवलपमेंट जो सबसे नीचे लिखा है, प्रोडक्ट इंजीनियर जो चिप डेवलपमेंट का काम होता है,
इट इज़ सबसे हाईएस्ट पेड है और उसके लिए आपको जो स्किल्स होनी चाहिए, अगर आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर अच्छे से आता है तो आप यू कैन बी अ फिट इन दिस प्रोडक्ट इंजीनियर्स। पूरा प्रोडक्ट कैसे बनाना है, अब इस मोबाइल में अगर हम देखें तो कितनी चिप होंगी, कैन यू गेस कितनी चिप्स होंगी इस मोबाइल में? कोई भी मोबाइल ले लीजिए, कोई स्मार्टफोन है, उसमें कितनी चिप होंगी? 10, 20, 30, 40। इट इज़ मोर देन टू बी 110 चिप्स है। 110 तो पेटेंट ही है इसमें, 110 तो पेटेंट चिप है, मतलब पेटेंट चिप मतलब अलग अलग इंडस्ट्री से खरीदी हुई चिप है। 110 पूरा सिस्टम जब बन रहा है इसमें 150 चिप है। और एक ई व्हीकल में कम से कम 1000 चिप होती है, 1000 चिप, 1000 चिप। तो यू कैन सी द लेवल, यू कैन सी द वॉल्यूम। हर आदमी मोबाइल लेके चल रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं कि हर आदमी 100-150 चिप तो अपने साथ में लेके चल रहा है। फिर किसी ने स्मार्ट वॉच पहनी हुई तो वो अपनी अलग चिप लेके चल रहा है, 50-60 तो वो कैरी करके चल रहा है। फिर और कुछ अगर कोई कार लेके चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक तो 1000, तो एक आदमी कम से कम, और ये प्रोजेक्टर सब मिला के हम देखें तो हमने करोड़ों चिप फैब्रिकेट हो रही है और हर जगह VLSI चिप के बिना कुछ काम नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि पूरी, अगर आज कोई सप्लाई करना बंद कर दे, कोई एक चिप बंद कर दे तो पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फट ठप हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर एक मोटर ड्राइवर बनाना बंद कर दे कोई कि हमें नहीं देना मोटर ड्राइवर, जाओ कर लो जो करना है, तो कोई एक व्हीकल आपको नया दिखेगा नहीं पूरे सिस्टम में। तो चिप इंडस्ट्रीज पे इसलिए बहुत फोकस हैं और हमारी गवर्नमेंट में बहुत इनिशिएटिव ले रही हैं। तो और इसी का पार्ट है C2S प्रोजेक्ट और इसी पार्ट में हम भी काम कर रहे हैं और आपको भी काम करना है, IPS को भी। अभी तक IPS के कोई स्टूडेंट्स हमारे पास आए नहीं। हमारे पास इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी होती है, पता नहीं आपके यहाँ सर्कुलेट नहीं हुआ होगा, पर वे हम इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी देते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमारे पास मेडिकेफ, प्रेस्टीज, IIT श्रीनगर, जम्मू और NIT से कुछ बच्चे थे, उन्होंने मिलकर RISC-V प्रोसेसर डिज़ाइन किया है इस बार। कल आप आएंगे तो दिखाएंगे, उसका लेआउट बन के भेजा है हमने, वो हमने फैब्रिकेशन के लिए भेज दिया, पूरा क्लीन अप हो गया, उसको फैब्रिकेशन के लिए भेज दिया है। तो नेक्स्ट 3 या 4 महीने में फैब्रिकेट होकर आ जाएगा। तो हर समर में हमें कोर्स कराते हैं, कुछ अच्छे बच्चे आइडेंटिफाई करते हैं और उनसे प्रोडक्ट डिज़ाइन कराते हैं, चिप डिज़ाइन कराते हैं, चिप फैब्रिकेट कराते हैं और नेक्स्ट समर में उनसे उसी चिप को टेस्ट कराते हैं। तो दे कैन ऐड इन देयर रिज्यूम कि मुझे चिप डिज़ाइनिंग, चिप फैब्रिकेशन पूरा आता है, तो वो आपके लिए मैटर करता है। और जिन स्टूडेंट्स ने हमारे लैब में, मतलब ये तो हमारे, ठीक है मेरे खुद के मुंह से मेरी बड़ाई करना, पर हमारी नहीं, हमारे लैब में जिन बच्चों ने 6 मंथ कंप्लीट काम किया है वो सारे प्लेस्ड हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं जो इधर उधर घूम रहा हो। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, क्योंकि आजकल स्किल्ड मैन पावर चाहिए। अगर आपको बहुत अच्छे से आती हैं सारा फ्लोज तो आपको चाहिए। और हमारे पास, मुझे लगता है MP में हमारे कोई कॉम्पिटिटर नहीं है जिसको इतना अच्छे से, या इतना अच्छा लैब या इतना अच्छा डेवलपमेंट होता होगा। तो आप आइए, सीखिए, आप वहाँ सीखिए, फिर यहाँ भी डेवलप करिए। हमारा तो यही पर्पस है कि सभी जगह हम इंदौर में सब कॉलेजेस की इतनी एफिशिएंटी हो, इतना एफिशिएंट कॉलेज हो कि वो सब अपनी अपनी चिप बना के दे। तो हर समर में कोर्स करिए, सीखिए, लर्न करिए, नेक्स्ट समर में चिप बनाइए, उसके अगले समर में उसको टेस्ट करिए, तो आपकी जनरेशन चलती रहेगी ऐसे। तो आप उसका IPS चिप, जैसे हमने, हमारा जो चिप का नाम था, मैंने तो नहीं दिया, किसी और ने दे दिया उसको, उसका नाम दिया है माँ अहिल्या चिप, माँ अहिल्या DAC चिप। अगर आप सर्च करें तो गूगल में मिल जाएगा माँ अहिल्या, क्योंकि जिस दिन वो चिप बन के आई थी तो हमारा यूनिवर्सिटी का नाम भी देवी अहिल्या से है। और जिस दिन चिप बन के आई थी उनका 300th बर्थडे था, उनका 300वां जन्मदिन था। तो उस दिन कुछ बहुत सारे लोग आ गए थे, तो उन्होंने उसको माँ अहिल्या DAC चिप का नाम दे दिया। तो ऐसे आप IPS चिप दे दीजिए, अपने नाम पे चिप बना दीजिए। जब बनाएंगे अपने रिज्यूमे में ऐड करेंगे कि मैं चिप लेआउट बनाना आता है, तब आपको कुछ इंपॉर्टेंस मिलेगी। और अगर हमें फ़ायदा क्या होगा कि MP में अगर इकोसिस्टम बनता है तो सभी को फ़ायदा होगा। जैसे जितनी सॉफ्टवेयर की कंपनीज आती हैं, वैसे अब हार्डवेयर की कंपनीज आएंगी, VLSI कंपनीज आएंगी। तो अब ये तो सब बातें हमारी नॉलेज की हो गई, पर थोड़ा सा हम समझने की बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो अभी मैंने जो अभी लेक्चर प्रिपेयर किया, वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे लिए बताने के लिए, पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मोड में हमने लेक्चर प्रिपेयर किया है, दैट इज़ टू बी अ हार्डवेयर फॉर AI और मशीन लर्निंग। क्योंकि आजकल हर कोई बच्चा आके पूछता है कि सर मुझे AI में एडमिशन मिल जाएगा, मुझे मशीन लर्निंग में एडमिशन मिल जाएगा क्या? तो आपको AI मशीन लर्निंग में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं तो भी आप AI और मशीन लर्निंग में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आप क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो आज मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि हमारे पास भी जितने फ़ोन आते हैं, हमें भी कॉलेज में, हम तो सबसे पहले बच्चा यही पूछता है फ़ोन लगा, सर AI मिल जाएगा क्या आपके यहाँ का? तो मैंने कहा AI में क्या करोगे? बोले सर बस AI मिल जाए बस सर, बात तो बाकी तो मैं कर दूँगा जो भी करना है। उसको क्या करना है उसको नहीं पता कि AI में करेगा क्या, वो AI होता क्या है, क्या बनता है। आज हम बात करेंगे AI आर्किटेक्चर्स का, कि AI में हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं। और आपको ये जानकर एक बड़ा आश्चर्य होगा कि मेनली रोल AI इंजीनियर्स में VLSI का ही है। अगर हार्डवेयर नहीं बनेंगे तो कोई AI सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आप देखिए, फर्स्ट AI मॉडल आने में 30 साल का टाइम लगा, CPU से GPUs आने में 30 साल का टाइम लगा, तो ये 30 साल का टाइम इंडस्ट्री को भी लगा। जब तक कि नया हार्डवेयर नहीं आ गया तब तक कोई नया इनोवेशन नहीं हुआ।
AI इतना जल्दी फास्ट क्यों आ गया? क्योंकि NVIDIA, आप NVIDIA का नाम ही नहीं सुना होगा उसके पहले किसी ने। NVIDIA आया, NVIDIA ने GPU इंट्रोड्यूस किया, अब NVIDIA के तर्ज पे TPUs इन्वर्टर हो रहे हैं, ब्रेन वेव्स हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोसेसर आते हैं, सबके आर्किटेक्चर अलग अलग हैं। तो अगर इफ़ यू नो द आर्किटेक्चर इंजीनियर तो हम AI ML सब कुछ सीख सकते हैं, बहुत ईजी है। तो आज जो हम टॉपिक फोकस करेंगे वो करेंगे हार्डवेयर फॉर AI और ML के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो सभी के लिए इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सभी को इंटरेस्टिंग चीज़ चाहिए, कोई बोरिंग चीज़ नहीं चाहिए। अगर हम सेमीकंडक्टर पढ़ाएंगे तो आप बोर हो जाओगे थोड़ी देर में, क्योंकि सेमीकंडक्टर खुद ही बोरिंग है मतलब वो एक बार समझना है। जो बहुत पैशनेटिंग है वही लर्न कर सकता है, बाकी तो बहुत मुश्किल है। इलेक्ट्रॉनिक्स लर्न करना बहुत मुश्किल है, अगर आप में ज़ील नहीं है, आप में पेशेंस नहीं है तो बहुत मुश्किल है। अगर आप में ज़ील पेशेंस है तो आप कुछ भी लर्न कर जाओगे, तो वो डेवलप करनी पड़ेगी आपको पेशेंस और ज़ील अपने इसमें। पर अभी तो हम जनरल आर्किटेक्चर की बात करेंगे, कल हम बात करेंगे बहुत कोर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे। तो ये देख लीजिए जो जो कंपनीज़ हैं, टॉप हायरिंग कंपनीज़ जो इंडिया में है वो इंटेल है, एनवीडिया है, क्वालकॉम है, AMD है, टेक्सास है, सिनॉप्सिस है, कैडेंस एंड माइक्रोन है। और सेमीकंडक्टर टैलेंट जो है वो है जो खुद का है वो है सैमसंग में है, ब्रॉडकॉम में है, NXP है, इन्फिनियॉन है, ऑस्मी है, ST है, मार्वल है। किसके नाम सुने? सभी के, लगभग सभी कंपनीज के नाम सुने। जो मेन फोकस है आप लोगों का वो इस पे होना चाहिए। हाँ, सैलरी ग्रोथ ओवर एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपोनेंशियल है। सॉफ्टवेयर में एक कर्व के बाद सैचुरेशन है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है। PPT हार्डवेयर है, नहीं PPT। तो स्टूडेंट के इंटरेस्ट को देख के हमने भी अपना डोमेन चेंज किया। नाउ द डोमेन इज व्हाट इज AI मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड हार्डवेयर फॉर AI मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। क्या हार्डवेयर्स होते हैं इसके लिए? सॉरी, तो हार्डवेयर फॉर डीप लर्निंग मेनली हमारा जो फोकस है वो डीप लर्निंग के लिए है। हम डीप लर्निंग के लिए काम करते हैं, कुछ न्यूरल नेटवर्क्स हमने डिज़ाइन किए हैं डीप लर्निंग के लिए। IIT हमारे यहाँ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, अभी हमने बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है हमारे DAVV का ही। कुछ कैंसर सेल्स को लेके डीप लर्निंग मॉडल डेवलप किए हैं, उसी के लिए हम चिप डिज़ाइन कर रहे हैं। और वो चिप ऐसा डिज़ाइन कर रहे हैं कि वो मोबाइल जैसा डिवाइस हो जो कि डिटेक्ट कर पाए कि अगर किसी को कैंसर सेल्स हैं जिसके, अगर तो वो इजीली डिटेक्ट कर पाए। जैसे अभी हम ब्लड प्रेशर डिटेक्ट कर रहे हैं, ऐसे हम चाह रहे हैं कि ऐसा कोई डिवाइस बने, पर उसके लिए आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना है। तो हमने कुछ फॉरेन की यूनिवर्सिटी से भी कोलैबोरेशन किया है, कुछ बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, कोई बायोकॉम करके कंपनी है एक बहुत अच्छी जो स्पॉन्सर कर रही है पूरे प्रोजेक्ट को, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो उसी को लेके हमें कुछ बताने वाले हैं आपको कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे करेंगे उसको। तो अबाउट एडवांस VLSI लैब जो हमने नाम दिया है, उसका नाम दिया है एडवांस VLSI लैब, जो अभी बात किया था। तो ये चिप हमने बना रखी है। अगर हम ये चिप की बात करें तो ये फर्स्ट चिप थी जो कि DAC था, जिनको उन्होंने नाम दिया माहिलिया डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स। ये चिप है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की। उसके बाद एक प्रोडक्ट जो हमने डेवलप किया था, इट इज़ eFabless। मलेशिया का कंपटीशन था, मलेशिया में eFabless टाइनी टाइप आउट करके प्रोजेक्ट था। टाइनी टाइप आउट सुना किसने? टाइनी ML मशीन लर्निंग सुना है? टाइनी ML एक नया सॉफ्टवेयर आया है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, जिसमें ML के आप पैकेजेस जनरेट करके ML को आप हार्डवेयर पे डेवलप कर सकते हो इजीली। गूगल ने अभी लॉन्च किया है। तो दिस वाज द प्रोजेक्ट ऑफ गूगल ऑल्सो। जब गूगल ने अपने फैब्रिकेशन लैब डाला मलेशिया में, तो उनको उस फैब्रिकेशन लैब को टेस्ट करना था। तो उन्होंने इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपटीशन किया कि आप सब लोग जितने कॉलेज से पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने खुद के डिज़ाइन लेके। तो इंडिया से हमने पार्टिसिपेट किया था। तो 13 इंडिया से इंस्टीट्यूट सिलेक्ट हुए थे जिनकी चिप फैब्रिकेट हुई है। तो ये हमारी चिप भी फैब्रिकेट हुई थी। तो फर्स्ट चिप हमारी ये है, वैसे सीरियल ऑर्डर गलत लग गया। द फर्स्ट चिप इज दिस इज टू बी ECC, इसको बोलते हैं एरर करेक्शन कोड। हमने एक एरर करेक्शन कोड डेवलप किया था जो कि न्यूरल नेटवर्क में होने वाली गलती को, न्यूरल नेटवर्क जैसा वर्ड सुना है आप लोगों ने सभी? यू नो द न्यूरल नेटवर्क में न्यूरॉन्स होते हैं, उनका वेट होता है। तो वेट एडजस्टमेंट के लिए हमने एक एल्गोरिथम डेवलप किया था। वो एल्गोरिथम हमने इस स्टेप में डाला है, जो कि वेट एनालिसिस करके वेट एडजस्टमेंट करता है बैकवर्ड पाथ्स कैलकुलेशंस करके। तो वो इस वाली चिप में था, इस वाली चिप में जो बना था। अभी ये जो चिप बता रहा हूँ, ये चिप इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये अभी स्टूडेंट ने हमारे डिज़ाइन किया है। इट इज़ RISC-V प्रोसेसर। RISC-V प्रोसेसर का नाम सुना होगा, आजकल बहुत चल रहा है, ओपन सोर्स प्रोसेसर है। तो इट्स RISC-V प्रोसेसर। इसमें करीबन 11 लाख के आसपास ट्रांजिस्टर ये हमारी टीम ने डेवलप किया है, जो कि IIT में लास्ट ईयर इंटर्नशिप करके गई, जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं NIT सूरतकल के, कुछ बच्चे 3 बच्चे NIT सूरतकल के थे, 2 बच्चे IIT इंदौर के थे, 3 IIT जम्मू के थे, कुछ विशाखापट्टनम से थे, कुछ GSITs के थे, कुछ एक्रोपोलिस के भी थे बच्चे, कुछ मेडिकैप्स के भी थे। तो करीबन 65 बच्चों ने मिलकर ये पूरा चिप डेवलप किया है। क्लीन पूरा हमने किया है डिज़ाइन, बच्चों ने अलग अलग ब्लॉक्स डिज़ाइन किए हैं उसमें, उन सबको हमने इंटीग्रेट किया, उन पूरे ब्लॉक को क्लीन किया। क्लीन करना मतलब उनको
फैब्रिकेशन तक बनाना, फिर उनका चिप टेप आउट करना, फिर पैकेजिंग करना, ये सब हमने अपनी लैब में किया है। तो आप भी अगली बार पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इंटर्न फ्रॉम द लैब डेवलप द RISC-V प्रोसेसर टेप आउट टू बी सबमिटेड फॉर द फैब्रिकेशन। बहुत सारी यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएशन है, आपकी ज़रूरत नहीं है इसमें। ये सोशल मीडिया कवरेज हैं, क्योंकि चिप नया था, जब पहली चिप बन के आई मध्य प्रदेश में तो वो हमने बनाई थी, और उस समय बहुत ज़्यादा कैचिंग वर्ड भी था, सेमीकंडक्टर बहुत बड़ा कैचिंग वर्ड था, तो उसको बहुत अच्छा मीडिया कवरेज भी मिला। टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके सारे जितने पेपर्स हैं उन सब ने उसको कवर किया अच्छे से। और इवन दो चीफ मिनिस्टर और नरेंद्र मोदी जी ने भी उसको टैग किया था और ट्वीट किया था उस पर कि मध्य प्रदेश ने एक नया माइलस्टोन अचीव किया। इस पर हमने पेटेंट फाइल किए हैं, कुछ पेटेंट भी मिल गए हमको चिप डिज़ाइनिंग के लिए। तो ये हमारा लैब है, इसमें अभी तो लोग आते जाते रहते हैं। ये हमारा स्टाफ मान लीजिए, जिसमें कुछ प्रोजेक्ट एसोसिएट्स हैं जो कल आपको मिलेंगे, सारे लोग वहीं मिलेंगे लैब में। स्नेहा है, ऋषभ है, आशीष है, प्रियंका है, अमित तो चला गया, अमित इज़ नाउ जॉइन टू द गुवाहाटी, IIT गुवाहाटी ज्वाइन कर लिया उसने। तो अभी कुछ लोग मिलेंगे आपको। और ये हमारा चिप का अचीवमेंट है, जो माहिल्या नाम रखा था वो इन्होंने नाम रखा था, कैलाश विजयवर्गीय जी उस दिन आए थे, 300वीं जयंती थी उनकी, उन्होंने नाम दिया था इसको। और जो पूरे इंडिया में जो फर्स्ट चिप फैब्रिकेट हुआ था SCL चंडीगढ़ में, ये वाला, इसमें 17 चिप्स थी, 17 चिप्स पूरे इंडिया से 17 चिप बनी थी। तो इसमें से एक चिप IIT DAV इंदौर की भी थी, जो अश्विनी वैष्णव जी ने हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ उनको हैंडओवर करी थी। वो चिप पहली चिप थी जो SCL चंडीगढ़ ने बनाई है। तो ये हमारी चिप के, ये हमारी लैब के कुछ अचीवमेंट्स है। अभी बहुत सारा अचीव करना बाकी है, तो उसके लिए अभी हम बात कर रहे हैं। अभी सबको पता है कि ये डायग्राम सभी को पता है, जो AI समझता है वो जो समझता है कि AI है, AI का सब पार्ट मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग उसका भी सब पार्ट है ना। तो इसमें ज़्यादा हम टाइम नहीं ख़राब करें। आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या 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 समझ सकते हैं? अगर कोई आपको सिंपल एग्जांपल पूछे कि व्हाट इज़ AI मीन्स व्हाट, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं AI को? व्हाट इज़ AI आपकी टर्म में क्या हो सकता है? मेरी अलग डेफिनेशन हो सकती है, आपकी अलग डेफिनेशन हो सकती है। AI क्या हो? व्हाट इज़ AI? खुद से सोच सके, फिर सोच के क्या करेगा वो? कुछ भी बना सकता है। गुड। और सोचना एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए AI में। और क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए AI में? AI मतलब क्या हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो क्या हुआ? आर्टिफिशियल क्यों बोला इसको? हमने बनाया। और हम खुद तो क्या है? हम खुद अपने आप को क्या समझ रहे हैं? वो आर्टिफिशियल है, हम नेचुरल इंटेलिजेंस है ना। तो हमको नाम देना चाहिए NI। हम NI नहीं क्यों बन रहे? होना चाहिए ना, NI होना चाहिए हम लोग। नेचुरल इंटेलिजेंस और एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इसलिए क्योंकि बनाया गया है वो, पर इंटेलिजेंस मतलब क्या हुआ? हम ओपन, मतलब ऐसा कोई शर्माने की बात नहीं है, पर आप जब तक क्वेश्चन ना करेंगे अपने दिमाग में अंदर तक कुछ, मैं बताऊंगा कि दिमाग में कैसे जोड़ देते हैं, AI कैसे काम करता है। तो जब तक आपके न्यूरॉन्स एक्टिवेट नहीं होंगे तब तक आप कुछ सोचेंगे नहीं, तब तक आप आंसर करिए चीज़ों को। आपके समझ में क्या आता है? व्हाट इज़ AI? आपके समझ में क्या? आपको अगर दे दिया जाए कि आप चलो भगवान हैं और आपको कुछ बनाना है, तो आप क्या AI में क्या बना दोगे? वो क्या क्या कर पाएगा? वो डीप रिसर्च करने के लिए करेगा। और कुछ कोई एग्जाम्पल बता सकते हो AI का? आप अभी यूज़ कर रहे हो कि आपके फ़ोन में AI वगैरह है क्या? क्या AI? जेमिनाई यूज़ कर रहे हो। वो क्या कर रहा है जेमिनाई? एनालिसिस करके समरी देना। मतलब ChatGPT इज़ अ पार्ट ऑफ AI बोल सकते हैं? ChatGPT सभी लोग यूज़ कर रहे हैं या कोई यूज़ नहीं कर रहा है? सब यूज़ करते हैं ChatGPT, सब यूज़। ChatGPT इज़ अ पार्ट ऑफ AI। और कोई मॉडल इसमें वॉइस सर्च करते हैं आप कभी मोबाइल में? है सिरी, है गूगल करते हैं, तो वो क्या है? उसको क्या बोलते हैं? NPL, नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम डीप लर्निंग का एक और नया पार्ट आ गया है, NLPs। डीप लर्निंग का एक और नया पार्ट हो गया NLPs, जो नेचुरल, आप तो हिंदी बोले तो भी सीख रहा है वो, तो गुजराती बोलोगे तो भी सीख रहा है, महाराष्ट्रीन बोलोगे तो भी सीख रहा है, कुछ पे भी सब पे जवाब दे रहा है बेचारा वो। तो उसको बोलते हैं नेचुरल प्रोग्रामिंग। तो उसकी जो प्रोग्रामिंग है उसके कैसी बोली? नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है NLP मॉडल से। तो जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फीड कर दोगे वो सब बनाने लग जाएगा। तो वापस हम तो AI पे आ जाते हैं। व्हाट इज़ AI? AI का मतलब मुझे अभी तक तो कोई डेफिनेशन मिली नहीं। अच्छी डेफिनेशन बताइए, AI मतलब क्या होगा? मशीन ओन्स ब्रेन। ओके, ठीक है। तो सीख के क्या करेगा? मशीन का ब्रेन हो जाएगा तो क्या करेगा दिमाग?
वो करने के लिए, मतलब रिपीटेटिव वर्क मतलब वापस सीखेगा नहीं वो नया। ये रिपीटेटिव वर्क तो ये हुआ कि 2+2 हमने उसको ट्रेन कर दिया कि 2+2 इज 4, पर हमने उसको 3+3 दे दिया, वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसको तो आपने ट्रेन किया केवल 2+2 के लिए, उसको तो यही पता है। AI इज दैट, AI खुद सीखे और उसके हिसाब से वो एक्शन ले। हम बार बार कार चलाएंगे और बार बार उसको बताएंगे कार चलाने में, अगर हमने सेल्फ ड्राइविंग कार ले ली, मैं बार बार बताऊँ कि ऑब्स्टेकल आता है तो क्या करना है, उसको ब्रेक लगाना है। बार बार मैं उसको समझाऊंगा कि हर बार जाके नहीं, उसको खुद को लर्न करना पड़ेगा कि भैया इस तरह के ऑब्स्टेकल्स आएंगे और अगर ये ऑब्स्टेकल्स आते हैं तो आपको क्या करना है, ब्रेक लगाना है। अगर ग्रीन लाइट दिख रही है आपको, आप नहीं बैठे हो, कौन बैठा, कंप्यूटर बैठा, कंप्यूटर को समझ में आएगा कि यार कलर आइडेंटिफिकेशन को समझा देंगे आप कि 3 कलर होते हैं भैया ट्रैफिक में, एक ग्रीन होता है, एक रेड होता है और एक और कौन सा होता है, येलो होता है। तो ग्रीन पे क्या करना है, आपको चलना है, रेड पे आपको रुकना है, ऑरेंज पे आपको क्या करना है, रेडी रहना जाने के लिए, रेडी फॉर गो। तो उसको मैं बार बार थोड़ी बताऊंगा कि हर सिग्नल पे जाके उसको कान में बताऊंगा कि यार देखो ग्रीन सिग्नल आएगा, तो वो खुद लर्न करे चीज़ों से। कहीं बहुत डार्क ग्रीन होगा, है ना, रात में हमको डार्क ग्रीन दिखेगा, और मान लीजिए उस कंप्यूटर को सुबह ग्रीन दिखा ही नहीं, बहुत सारी सनलाइट है, गर्मी के समय आपको लाइट ही नहीं दिखी, तो फिर क्या करोगे, आप तो रोज ही एक्सीडेंट करते जाओगे। तो हमको उसको लर्न करना पड़ेगा, हमको उसको सिखाना पड़ेगा कि ग्रीन मतलब ये नहीं ग्रीन कि आपको एक पर्टिकुलर ग्रीन है, इस तरह का ग्रीन जो पैटर्न होगा वो आपको समझना है कि वो ग्रीन कलर है। तो मशीन दैट कैन लर्न एंड दैट कैन रिएक्ट, मशीन जो कि खुद लर्न कर सके एक्सपीरियंस पे, उसको बार बार हम ट्रेन करेंगे। हम ट्रेनिंग समझते हैं ना, हम बार बार ट्रेनिंग देते हैं किसी को, ट्रेनिंग क्यों देते हैं, ताकि वो लर्न कर पाए। हम भी जब बच्चे छोटे क्लास में, मेरी छोटी बच्ची, हम उसको 2 ट्रेस करना सिखा रहे हैं अभी। तो 2 ट्रेस करना मतलब 2 लिखना, अभी आपके लिए तो बहुत ईजी है 2 लिखना, पर उसके लिए जब आप सोचोगे जिसको 2 का मतलब ही नहीं पता, वो 2 ट्रेस कैसे कराए उसको। तो मशीन को हमको लर्न कराना है, ताकि वो अगली बार हम बार बार लर्न नहीं कराएंगे, वो खुद मॉडल को डेवलप करे, खुद समझे चीज़ों को। तो दैट इज़ टू बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब पार्ट है, इट इज़ टू बी मशीन लर्निंग। तो मशीन को लर्न करा रहे हैं हम, एक मशीन ऐसी बना रहे हैं जो कि खुद समझे, खुद सीखे, खुद करे। आपने डार्क फैक्ट्रीज सुना है नाम, मूवीज़ देखते हो तो नई मूवीज़ आई है एक, देखना डार्क फैक्ट्रीज, चाइना की मूवी है, चाइनीज़ मूवी है। उसमें बहुत शॉर्ट, वो वाली मूवी नहीं है ना, एक्शन मूवी नहीं है, ये शॉर्ट मूवीज़ हैं जो टेक्नोलॉजी शॉर्ट मूवीज़ बताते हैं। उन्होंने बताया है कि उन्होंने कार डेवलपमेंट के लिए एक फैक्ट्री बनाई है चाइना में, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन 0 है, कोई आदमी नहीं है उसमें, केवल रोबोट्स हैं उसमें। उसको डार्क फैक्ट्री से बोला कि उसको ना लाइट की ज़रूरत है, ना पानी की ज़रूरत है, कुछ वो अंधेरे में बनी हुई है पूरी चीज़। तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी सेव हो रही है उसमें, ना कोई आदमी, कुछ 24 घंटे में वो हर 3.5 घंटे में एक कार बना के दे रही है, हर 3.5 घंटे में एक कार बन के आती है वहाँ से। इट इज़ डार्क फैक्ट्री, ह्यूमन इंटरवेंशन 0, कुछ भी नहीं है। तो वो मशीन से, मशीन लर्न कर रही है, खुद लर्न कर रही है कि कोई पार्ट कहाँ लगाना, एक बार हमने ट्रेन कर दिया उसको, फिर अपने आप से बना रही है। वो तो रिपीटेटिव प्रोसेस है। रिपीटेटिव प्रोसेस आपको देखना है कि यार कहीं टायर तो ऐसा नहीं उसने उल्टा ही लगा दिया हो, तो फिर कैमरा लगाना पड़ेगा, जो विजनरी कैमरा, जो कंप्यूटर विजन भी सुना होगा। कंप्यूटर विजन क्या होता है, कंप्यूटर विजन सुना है, नाम सुना है कंप्यूटर विजन, नहीं सुना? सुनिए बेटा, ये सब टेक्नोलॉजी वर्ड है, सुनो, समझो, सीखो, अपनी लैंग्वेज में सीखो कि कंप्यूटर विजन मतलब क्या हुआ। कंप्यूटर को हमारे जैसा विजन देना है। हम तो विजनरीज है ना, हमारे पास 2 आंखें हैं, कंप्यूटर के पास आंखें थोड़ी है बेचारे के पास। और कंप्यूटर को हमको ऐसा फील कराना कि तुम्हारे पास 2 आंखें हैं, तुम भी देख सकते हो। कंप्यूटर को ऐसा फील कराना, उसको बोलते हैं कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर की आंखें देखी कभी नहीं होती कंप्यूटर की, पर हमको फील कराना है। हाँ, कैमरा है, मैडम बोल रही कैमरा है, पर कैमरे को फील कराना है। पर वो कंप्यूटर देख भी लेगा तो करेगा क्या, उसको प्रोसेस करनी पड़ेगी हमें। तो कंप्यूटर विजन है, डीप लर्निंग है। डीप लर्निंग का मेनली जो यूज़ है वो है हमें कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन का नाम है। मुझे किसी आदमी को पहचानना है भीड़ में से, तो दैट इज़ टू बी डीप लर्निंग। अब कैसे डीप लर्निंग करते हैं हम थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा समझेंगे नहीं। देखिए, तो प्रॉब्लम स्पेस की बात करी सबसे पहले, तो 2 तरह की प्रॉब्लम होती है। द प्रॉब्लम कैन बी चैलेंजिंग फॉर द ह्यूमन बीइंग बट रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर अ कंप्यूटर। एक प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए चैलेंज है, पर कंप्यूटर के लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मतलब अगर मैं उसको बता दूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ 10 सीरीज़ में से मुझे प्राइम नंबर आइडेंटिफाई करके दिखाओ, 10 तक तो ईजी है। मैं बोलूँ कि आपको 1 लाख तक में आप प्राइम नंबर आइडेंटिफाई करके दिखाओ, तो आपके लिए डिफिकल्ट है, पर प्रोग्राम में लिख दूंगा कंप्यूटर में तो इट इज़ कंप्यूटर के लिए ईजी है। तो कुछ प्रॉब्लम जो है वो ह्यूमन बीइंग के लिए चैलेंजिंग है, पर कंप्यूटर के लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसको समझा दिया कि ये एक बार डिफाइन कर दिया कि ये प्राइम नंबर है भैया। आपको पूछा कि इवन ऑड आइडेंटिफाई करो,
फर्स्ट 100 नंबर में से इवन ऑड तो आप तो कैलकुलेट करने बैठ जाओगे, कंप्यूटर थोड़ी करेगा, कंप्यूटर देखेगा इवन ऑड 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, सीधी सी बात है। वंस यू राइट अ प्रोग्राम उसके लिए बहुत ईजी हो गया। तो कुछ प्रॉब्लम है वो ह्यूमन बीइंग के लिए चैलेंजिंग है, पर कंप्यूटर के लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पर इसका अपोजिट हो रहा है आज की दुनिया में। आज की दुनिया में क्या बोल रहा है कि प्रॉब्लम कैन बी ईजी फॉर द कॉमन पीपल्स बट द डिफिकल्ट फॉर द कंप्यूटर्स। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हमारे लिए बहुत ईजी है पर कंप्यूटर के लिए बहुत डिफिकल्ट है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप सब लोग बैठे हुए हो, आप सबने ब्लू कलर के टी शर्ट पहने हुए हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर, इट इज़ वेरी, मेरे लिए बहुत ईजी है पर कंप्यूटर के लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कंप्यूटर की आंखें नहीं है, कंप्यूटर का ब्रेन भी नहीं है जो लर्न कर पाए। तो हमने यहाँ पे हमने उस तरह की प्रॉब्लम को एड्रेस करना है। तो दैट आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट कार इन अ पिक्चर, बहुत बड़ी पिक्चर में आपको वही बताया कि कार ढूंढ के बताओ, तो आपके लिए बहुत ईजी है, आप इजीली ढूंढ पाओ। पर कंप्यूटर कैसे ढूंढेगा बेचारा कि कार कहाँ है? ऑब्स्टेकल आ रहा है, वो ऑब्स्टेकल मूविंग है, नॉन मूविंग है, सही में ऑब्स्टेकल है, इल्यूशन हो रहा है, क्या पता। तो कंप्यूटर का तो बहुत डिफिकल्ट है। तो कुछ प्रॉब्लम है जो कि हमारे लिए डिफिकल्ट है पर कंप्यूटर के लिए बहुत आसान है, कुछ प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत आसान है पर कंप्यूटर के लिए बहुत डिफिकल्ट है। अब दुनिया वहाँ जा रही है जहाँ प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत आसान है पर कंप्यूटर के लिए बहुत डिफिकल्ट है। वो कंप्यूटर में वो सारा कुछ देखना चाह रही है जो एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है। आप लर्न भी करते हो ना, ट्रैफिक से लर्न करते हो, आपको पता है कि यार इस चौराहे पे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो उस हिसाब से आप अवॉइड करते हो उस चौराहे को। वही गूगल बताता है आपको, वही मशीन लर्निंग है। गूगल पता था ना आपको, बार बार अपडेट करके देता है कि यार इस तरफ मत जाना, इस तरफ कोई रैली निकल रही है, इस तरफ यहाँ पे है, या धरना दे रखा है, यहाँ पे कार का एक्सीडेंट हो गया है। तो गूगल भी लर्न करना है। अगर गूगल को आप लर्न नहीं कराओगे तो क्या करेगा वो? रोज़ ही आपको एक जैसा पाथ दिखाएगा कि भैया यहाँ से मुझे भौरकुआ जाने में 7 मिनट लगते हैं, तो 7 मिनट लगाएगा वो तो। पर वो लर्न कर रहा है, बार बार अपडेट कर रहा है चीज़ों को कि यहाँ ट्रैफिक है, वहाँ ट्रैफिक है, यहाँ पे ऐसा है। तो दैट इज़ टू बी लर्निंग कंप्यूटर इसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो प्राइमरी फोकस विल बी ऑन सेकंड कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम। अगर हम एआई की बात करें तो एआई में हमेशा हम सेकंड कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम की बात करते हैं। डीप लर्निंग में हम सेकंड कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम की बात करते हैं, जहाँ पे कि हमारे लिए प्रॉब्लम ईजी है, हमारे लिए कोई भी चीज़ ईजी है पर कंप्यूटर के लिए वो डिफिकल्ट है। पर हम कंप्यूटर को चाहते हैं कि वो ह्यूमन की तरह काम करे। अब ये व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? 1 is 1, 2 is 4, 3 is 9, 4 is 16, स्क्वायर है। 7 का क्या हो जाएगा आंसर? 49। आपके पास लॉजिकल थिंकिंग है, कंप्यूटर के पास लॉजिकल थिंकिंग नहीं है। अगर कंप्यूटर को आपने ट्रेन किया है कि 4 = 16 होता है तो वो 7 = का आंसर ही नहीं दे पाएगा। तो हमें कंप्यूटर में डेवलप करना है कि नहीं, तुम खुद लॉजिकल थिंकिंग रखो, तुम्हारे पास लॉजिकल एबिलिटी होनी चाहिए कि आप सोच सको चीज़ों को। तो आज मैंने 7 के लिए पूछा, कल कोई उठा के 10 के लिए पूछ लेगा, कल को उठा के 50 के लिए पूछ लेगा। तो अगर उसकी लाइब्रेरी में नहीं होगा तो ऐसा नहीं है, उसको लर्न करना होगा कि इट इज़ स्क्वायर। स्क्वायर मतलब अगर आपसे पूछे कि स्क्वायर ऑफ दिस नंबर क्या होगा तो उसको पता होना चाहिए। भले उसको नहीं बताया गया है, मैंने नहीं बताया कि 10.5 का स्क्वायर क्या होगा, पर उसको अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से लर्न करके पता होना चाहिए कि भैया 10.5 का स्क्वायर इतना होगा। तो दैट इज़ नोन टू बी अ लर्निंग, वो लर्निंग करना है। अब कुछ क्विज है, अपन देखते हैं। हु इज़ दिस? रोहित शर्मा। ये कौन है? अब हमें कैसे पता लगा कि रोहित शर्मा है? ये देखा हुआ है। अगर आपको बिना देखी हुई चीज़ में दिखा दूँ तो आपने मुझे नहीं देखा, मैं आपको यहाँ मेरा पिक्चर लगाया था, पूछता कि हु इज़ दिस, तो आप नहीं बता सकते। तो कहाँ पे आया है? आपके न्यूरॉन्स में स्टोर है। तो हमारा जो दिमाग है वो लॉजिकल भी है और चीज़ों को स्टोर भी करता है। वो रोहित शर्मा आपने बहुत इजीली पहचान लिया है, पर इसके बारे में हम बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट के साथ काम करते हैं, उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि आप सीधे रोहित शर्मा को आइडेंटिफाई कर पाए। रोहित शर्मा को अगर मैं दूसरी ड्रेस बना देता तो कुछ लोग थोड़ा सा और सोचते। आपको अभी इंस्टेंट रिजल्ट आ गया क्योंकि आपने 3-4 चीज़ें कोरिलेट कर दी। क्या क्या चीज़ें कोरिलेट कर दी? कि उसने ड्रेस कौन सी पहनी हुई है, उसने इंडिया की ड्रेस पहनी हुई है, फिर बीसीसीआई का लोगो है, फिर क्रिकेट का लोगो है। तो आपने सब चीज़ें, आपका दिमाग ने सब चीज़ें कोरिलेट कर ली, उसको बना के एक समझ में आ गया कि ये क्या है, रोहित शर्मा है। पर सेकंड वाली इमेज में आप इतना कोरिलेट नहीं कर पा रहे। आपने देखा है इस आदमी को? नहीं देखा, पर कुछ लोग तुक्के लगा सकते हैं उसके बाद। ये देखिए, अब थोड़ा सा और श्योर हो सकते हैं अपन। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, बैट्समैन है, थोड़ा सा हेल्दी सा है। डेविड बून हमारी जनरेशन का, आपकी जनरेशन का नहीं है। तो अब हम तो हमारी जनरेशन बता पाएगी। आपको लर्न ही नहीं कराया, वो आप कैसे बता पाओगे? पर आप क्या करते हो? कुछ लोगों ने तुक्के लगाए। कैसे लगाए तुक्के? कोरिलेट करने की कोशिश करी कि बैट है तो ऑब्वियसली वो क्या होना चाहिए। उसको आपने, किसी ने नहीं बोला कि इंदिरा गांधी है, क्योंकि इंदिरा गांधी बैट लेके क्या खड़ी रहेगी। तो इट इज़ अ क्रिकेटर। हमें पता लगा क्रिकेटर है। फिर हमारी मेमोरी में हमने सर्च किया न्यूरॉन्स में कि क्रिकेटर में मेरी डिक्शनरी में कौन कौन सेव्ड है बताओ। तो रोहित शर्मा तो आपने पकड़ लिया क्योंकि रोहित शर्मा आपकी मेमोरी में स्टोर था।
और अभी भी वर्ल्ड कप जीता है तो मैं और पता है, मैं थोड़ा सा और पुराना प्लेयर ले लूँ बिना ड्रेस, ऐसे बिना इंडियन ड्रेस में, तो आपको और डिफिकल्टी होगी। तो हमारे न्यूरॉन्स पे रिस्पॉन्स करते हैं किसी चीज़ को लेके, बहुत लेटेस्ट चीज़ें हैं, बहुत हम कंटिन्यूस पढ़ते हैं किसी चीज़ को, कंटिन्यूस चीज़ में टच में रहते हैं, तो हमें पता लगता है कि वो बहुत ईजिली रिकॉल होता है। पर कुछ कुछ चीज़ों में हमें थोड़ा सा दिमाग में जोर देना पड़ता है, तो हमें कंप्यूटर को भी सिखाना पड़ेगा कि हर चीज़ में आंसर एट ए टाइम नहीं आएगा, आपको कुछ चीज़ों के लिए हो सकता है कि आपके तुक्के लगाना पड़ सके। पर अगर मशीन तुक्के लगाने लग गई तो हम तो सब बर्बाद हो जाएंगे। मिसाइल तुक्के लगाना पड़ेगा कि यार ये तो पाकिस्तान नहीं है, तो हो सकता है इंडिया ही हो, तो मैं तो चाइना में गिर जाती हूँ जाके। तो तुक्के लगाना मशीन के लिए अलाउड नहीं है, हमारे लिए अलाउड है, क्योंकि हमारे तुक्का लगाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। डेविड बून की जगह इसमें सचिन तेंदुलकर बोल देते थे, आपको कोई मारता थोड़ी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। पर मिसाइल के लिए आप रॉकेट लॉन्च किया आपने, वो रॉकेट जाके वहीं गिर गया, तो ऐसा तो तुक्का मशीन तुक्के नहीं लगा सकती। तो मशीन को श्योर शॉट होना है, उसके लिए हमें अच्छी एल्गोरिथम सीखना पड़ेगी, उसके लिए हम कोई चांस ले सकते। और एक क्विज देखते हैं, ये ताजमहल सभी ने देखा है, सभी ने छुआ है, दिया कि छुआ है, यू फील इट, बिना फील करे भी आपने बता दिया कि ताजमहल है। जरूरी नहीं कि कोई चीज़ फील करें हम, हमारी मेमोरी इतनी शार्प होती है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उस चीज़ को फील करें, ये गर्म है ठंडा है, हम देख के बता सकते हैं कि यार चलो इसके अंदर पानी ठंडा होगा या गर्म हो सकता है कि उससे भाप निकले तो गर्म पानी होगा, ठंडा पानी होगा। तो हमारे ये सेंसेस हैं बहुत सारे, कंप्यूटर के पास कुछ सेंसेस नहीं है। कंप्यूटर के पास हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, नोज़ भी नहीं है, आइज़ भी नहीं है, टेस्ट बर्ड भी नहीं है, तो वो तो टेस्ट कैसे, बेचारा वो तो बता देता कि इसका टेस्ट कैसा होगा, तो कैसे बताएगा। तो हमें सब चीज़ें कंप्यूटर में डेवलप करनी है और ये सब एल्गोरिथम के फॉर्म में हमें डेवलप करनी है। बिना हाथ पैर कान वाले आदमी को हमें समझाना है कि तू ये कर, उससे करवाना है हमें। तो कितना डिफिकल्ट है, आप खुद चैलेंज सोचो कितना डिफिकल्ट है। ये द इमेज किससे रिलेटेड होगी, इमेज कौन सी कार होगी, ये सेल्फ ड्राइविंग कार होगी। कैसे पता लगा सेल्फ ड्राइविंग कार है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में हमने कर रखा होगा, कोई कभी प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो सेल्फ ड्राइविंग कार आइडेंटिफाई, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कर सकती है कि कौन सी कार है, कौन आदमी है, कौन ट्रैफिक सिग्नल है, कहाँ क्या लगा हुआ है, इट इज़ अ क्लासिफिकेशन। तो हम ये बता सकते हैं, जो हमारी मेमोरी में हम सब बता सकते हैं। ये किससे रिलेटेड हो सकती है एक्टिविटी, गूगल मैप्स हो सकती है, जोमेटो स्विगी सब यूज़ करते हैं और ये अपडेट भी होते हैं सब, तो हम टाइम टू टाइम अपडेट कर रहे हैं उसको। फिर ये मैथ्स बिहाइंड द ग्राफ, क्या मैथ्स है इसके पीछे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लीनियर फंक्शन है, y इक्वल टू mx प्लस सी, सबने सुना, सबने पढ़ा, पर बोला ही नहीं। कंप्यूटर को ऐसा बोला कि तू बोलना ही मत कभी, तुझे आए तो ही मत बोलना, तो ऐसा काम चलेगा कंप्यूटर से, आप नहीं एक्सपेक्ट करोगे। मोबाइल बोले कल से बोलना बंद कर दे आपके इसमें, तो क्या करोगे, हे सीरी चिल्लाते रहो, कुछ नहीं करने वाला है वो, गला पकड़ लेगा, हे सीरी बार बार करोगे तो ऐसा थोड़ी कर सकता है बेचारा वो, उसको जो तो हमें सिखाना पड़ेगा चीज़ों को। और कुछ चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स है, कुछ चीज़ें बहुत इजी है, उसको हर चीज़ के लिए एक ही एल्गोरिथम, उसके लिए तो एक ही एल्गोरिथम है, वो तो 1-0 समझता है, वो नहीं समझता है कि यार हाफ ऑफ द बिट क्या होती है। तो उसको हमें समझाना पड़ेगा, हमें ट्रेन करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं डीप लर्निंग, उसको डीप लर्निंग कराना पड़ेगा हमें। अब थोड़ा सा और देखते हैं, समझ में आया। तो मैथ्स में क्यों नहीं बता पाया आप ईजिली, क्योंकि आप यूज़ नहीं करते बहुत ज़्यादा। अगर ये चीज़ आपको 10 अब मैंने पढ़ा दी, मैं कल फिर वापस से पूछूँ, कल दिन वाली क्लास में पूछूंगा, सब बता पाएंगे, क्योंकि आपको मैंने लर्न करा दिया और आपने समझ लिया, आपने स्टोर कर लिया। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इग्नोर भी कर दिया, बोले पढ़ा रहा होगा कुछ भी, यार क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो कल भी नहीं बता पाएगा। तो इट इज़ लर्निंग, प्रॉब्लम स्पेस की बात करते हैं। अब ये इमेज देख के कोई बता सकता है कौन किसकी इमेज होगी, किन की इमेज होगी, एपीजे, कैसे पता लगा, फिर तुक्के लगा दिए आप लोगों ने, इससे और क्लियर हुआ, तो दिमाग में और न्यूरॉन्स एक्टिवेट हुए, बोले नहीं वही हो सकता है। पहले हमारे पास चांस थे 30% के, तो हमारे जो मैं बात कर रहा हूँ वेट की, वो न्यूरॉन्स पे वेट होता है। हमारा लॉजिकल थिंकिंग इससे चलता है कि हम कितने न्यूरॉन्स एक्टिवेट होकर कितना वेट हमने मल्टीप्लाई किया। पहले सबसे पहले जो इमेज दिखाया मैंने, आपका जो न्यूरॉन्स थे वो अगर हम देखा जाए, प्रैक्टिकली में देखा जाए तो 10% और 15% श्योर थे, पर हमें बोलना था तो हमने बोल दिया कि चलो अब्दुल कलाम है। अब हमने सेकेंड पिक्चर लाया तो हम 90% के ज़्यादा श्योर हो गए, तो कुछ लोग अभी श्योर नहीं होंगे, तो फिर हमने ये इमेज और बना दी। अब 100% सारे लोग श्योर हो गए कि ये क्या है, अब्दुल कलाम जी हैं, क्योंकि पीछे मिसाइल भी लगा रखी है, राष्ट्रपति भवन भी लगा रखा है, तो वी कैन कोरिलेट दैट कि इट इज़ मिसाइल मैन थे, प्रेसिडेंट थे इंडिया के। तो ये सब चीज़ें हमारे पास, हमारे माइंड में सब चीज़ें बिल्कुल कंफर्म कर दी कि ये वो ही होंगे। तो पहली पिक्चर, दूसरी पिक्चर, तीसरी पिक्चर, तो हमारा दिमाग भी ऐसे ही सोचता है, लर्न करता है, उसके रिस्पेक्ट में वो करता है। जैसे ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग वर्सेस मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की जैसे हमने बात ही कर ली है। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में हम डेटा देते हैं और एक प्रोग्राम लिखते हैं, तो हमें आउटपुट मिलता था। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग बहुत पुराने ज़माने की प्रोग्रामिंग हो गई, पर आज की प्रोग्रामिंग जो है जिसमें डेटा और आउटपुट दोनों देते हैं, और वो आउटपुट से लर्न करता है और उसके हिसाब से एक मॉडल बनाता है, दैट इज़ नोन टू बी मशीन लर्निंग। एक सिंपल मॉडल हम बना दें कि मान लीजिए आपका, अब आपके यहाँ क्या चलता है, पास फेल का मुझे पता नहीं,
पर मान लीजिए अगर कोई बच्चा 50% स्कोर नहीं करता है तो उसको मान लीजिए फेल, और कोई बच्चा 50% से ऊपर स्कोर करता है उसको बोलते हैं मान लीजिए पास। तो सिंपल मॉडल बन गया, कुछ भी नहीं करना है। अगर कोई नया एक्स का आपने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया और कोई वाई बच्चा आ गया तो आप क्या देखोगे सबसे पहले? मार्क्स बता भैया 52 है, क्या बोलोगे उसको? पास। तो आपने डेटा प्लस आउटपुट से लर्न किया कि भैया 50%, आपने प्रोग्राम, आपने लॉजिकल थिंकिंग डेवलप कर दी। अब कोई नया ऑब्जेक्ट आता है तो वो ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, कुछ और कोई भी ऑब्जेक्ट आ गया, पर ये आईटी का ऑब्जेक्ट आ गया तो फिर क्या करोगे? आपने लर्न ही नहीं किया था उसके लिए तो आपने लर्न ही नहीं किया, तो उसके लिए मॉडल लर्न करना पड़ेगा। तो मॉडल अपने आप अपडेट होगा। फिर मॉडल 2 कैटेगरी में हो जाएगा, दिस इज फॉर आईपीएस स्टूडेंट, दिस इज फॉर आईटी स्टूडेंट, दिस इज फॉर मेडिकल स्टूडेंट। अगर आईपीएस का स्टूडेंट आता है तो उसमें देखना है कि भैया 50% से लेस में पास है कि मोर है। हमारे लिए मान लीजिए 70% हो आईटी के लिए, हो सकता है मेडिकल के लिए 30% ही हो, तो उसको अलग अलग मॉडल की कैटेगरीज बनाना पड़ेगा। उसके पहले उसको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा कि ये ग्रुप जो आ रहा है वो किस तरफ से आ रहा है। इट इज़ नोन टू बी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब उसको डिवाइड करना। क्लासिफिकेशन के बाद मॉडल अप्लीकेबल होते हैं। तो जो हमारी मशीन लर्निंग है उसमें डेटा प्लस आउटपुट दोनों होगा, तब हमें प्रोग्राम मिलेगा। मैनुअल फीचर एक्सट्रैक्शन। फीचर एक्सट्रैक्शन मतलब समझते हैं? आपका जो मोबाइल है ना, आप फेस से अनलॉक करते हो तो फीचर्स है उसमें, आपके जितने मोबाइल में जितने फेस है ना उस फेस के एल्गोरिथम बनी हुई है, उसके फीचर्स हैं सारे। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, उसमें 100 पॉइंट्स होंगे। 100 पॉइंट्स मतलब बहुत मिनिमम एल्गोरिथम लगा है। 1000 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 3000 पॉइंट, 4000 पॉइंट की अलग अलग एल्गोरिथम्स होती है। तो हर चीज़ की फीचर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो फीचर को हम एक्सट्रैक्ट करके अपने मोबाइल में रखते हैं, तब बताते हैं कि क्या है। तो अगर पहले मोबाइल होता नोकिया का मोबाइल, उसको तुम चेहरा दिखा के अनलॉक कर सकते थे क्या? क्योंकि वो मैनुअल फीचर एक्सट्रैक्शन करता था, वो मैनुअल। अगर मेरी जगह कोई सर लॉक अनलॉक करना चाहे फ़ोन तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फीचर्स मैच नहीं करेंगे। हर आदमी के यूनिक फीचर्स हैं, सबको पता है। रेटिना सबका अलग अलग होता है, हमने आधार कार्ड में भी देखा है। थंब भी लगा, मोबाइल को हम ऑन भी कर सकते हैं ना, अपने फिंगरप्रिंट से भी ऑन कर सकते हैं। तो फीचर है, दीज आर द फीचर्स। तो एक एल्गोरिथम चलती है, वो पीछे सारे फीचर्स को लेके कैलकुलेशन करके स्टोर करके रख लेती है कि अगर ये थंब, ये फीचर्स, ये एक्सट्रैक्ट हुए तो हम इसको पास करेंगे, अदरवाइज फेल कर देंगे। तो इट इज़ लर्निंग मॉडल। फिर पहले बहुत मुश्किल था। पहले हम अगर पुराने ज़माने की बात करें तो इसको समझाना कि कैट है बहुत डिफिकल्ट है। हमने सेम फीचर दिया पर ये लर्न नहीं कर सकता था, उसके 2 कान होना ही चाहिए। पर अगर सिंगल कान वाली अगर कैट आ गई तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि बिल्ली है, कि उसको हमने समझाया था कि केवल 2 कान वाली ही बिल्ली होती है। इट इज़ नॉट अ लर्निंग मॉडल, इट इज़ ओनली अ सॉफ्टवेयर। ट्रेडिशनल जो हम कंप्यूटिंग बोलते थे, थोड़ा सा बड़ा। इनमें से कोई भी इमेज दे दो, एक बिल्ली के लिए मैंने ट्रेन किया, वो सभी इन सबको आइडेंटिफाई करके बता देगा कि इट इज़ अ कैट। कोई भी इमेज दे दो। क्यों ये क्यों आया? बिकॉज इतनी बड़ी एल्गोरिथम चली, इसको बोलते हैं हम डीप लर्निंग। डीप न्यूरल नेटवर्क ट्रेंड एंड टू एंड। हमने डीप न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर दिया कि भले एक सिंगल आंख वाली बिल्ली आ जाए तो भी पहचान लो, पर उसके फीचर एक्सट्रैक्ट करो कि ये फीचर हैं क्या उसके। इट इज़ नोन टू बी अ फीचर एक्सट्रैक्शन। पहले जो कंप्यूटर्स थे वो सीक्वेंशियल कंट्रोल थे। सीक्वेंशियल मतलब 1 बाय 1 प्रोसेसिंग करते थे। ये सीपीयू जो है हमारा सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग करता है, जो जीपीयू है हमारा वो पैरेलल प्रोसेसिंग करता है। एक सीक्वेंशियल मतलब 1 बाय 1 लाइन को स्कैन करो, एक पूरा पैरेलली प्रोसेस कर दो। तो जब हम बात कर रहे हैं फीचर एक्सट्रैक्शन की इन सब की, तो हमें इसमें क्या चाहिए? मासिव पैरेलल प्रोसेसिंग चाहिए। बहुत ज़्यादा पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, सारे न्यूरॉन्स पैरेलली प्रोसेस होना चाहिए। अगर इन सबको सीरियल में प्रोसेस कर दिया तो आपको 10 साल लग जाएंगे एक बिल्ली को आइडेंटिफाई करने में। तो ये कितने न्यूरॉन्स हैं, सब पैरेलली प्रोसेस। हर एक जो डॉट बना हुआ है इट इज़ अ प्रोसेसर, इट इज़ अ डीप लर्निंग प्रोसेसर, एल्गोरिथम से वहाँ पे। तो वो सब मिलके डॉट प्रोडक्ट है, मासिव पैशन लर्निंग है, लार्ज कंप्यूटर प्लस मेमोरी चाहिए। और 1986 में पब्लिश हुआ। इट टुक अराउंड 30 ईयर्स टू डेवलप फर्स्ट हमारा AI मॉडल बनाने के लिए। तो 30 ईयर्स क्यों लग गए? क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं था, हम तो केवल CPU पे ही भिड़े हुए थे कि हम CPU से ही बना लेंगे सब कुछ। पर जब एल्गोरिथम डेवलप हुई कि हमें लगा कि नहीं, इस मोबाइल में हम तो फेस रिकग्निशन लाएंगे, फिंगरप्रिंट लाएंगे, वॉइस रिकग्निशन लाएंगे, सब लाएँ, हमें लगा कि अभी मोबाइल और एडवांस कर सकते हैं हम। तो फिर ये CPU फेल हो गए। फिर क्या आया? GPU आया। तो क्या हुआ? ये GPU आया, द फर्स्ट GPU। पैरेलल ग्रेड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस हैं। ये फ्लो कंट्रोल बहुत डिफ़िकल्ट है पर इसकी पैरेलल प्रोसेसिंग सबसे अच्छी है। तो ये सारी न्यूरॉन्स को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। और लिखा है कि 1986 में फर्स्ट मॉडल आ गया था, पर उसको बनने में क्या लगा? 2012 में बन के आया। सबसे फर्स्ट जो था वो AlexNet था, जो कि फर्स्ट मॉडल था, वो कि 10% एक्यूरेसी पे था डीप लर्निंग मॉडल जब से आया। और वो किसके कारण आया?
बिकॉज ऑफ द हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर तो पहले थे उनके पास, एल्गोरिथम तो पहले भी थी, पैरेलल प्रोसेसिंग, थ्रेडिंग, बहुत सारी एल्गोरिथम्स थी। आपने देखा वो पहले सिंगल कोर प्रोसेसर आया था, फिर डुअल कोर आ गया, फिर ऑक्टा कोर आ गए, 16 कोर आ गए, 32 कोर्स क्यों आई, अलग अलग कोर के कंप्यूटर्स क्यों आए? क्योंकि एक कंप्यूटर सफिशिएंट नहीं था, तो उन्होंने बोला कि एक कंप्यूटर सफिशिएंट नहीं, अब इसकी स्पीड बढ़ा ही नहीं पा रहे, तो हम क्या करें, 2 प्रोसेसर लगा दें। जैसे रोड बन रहा है, एक लेन का ट्रैफिक है, उस पर ट्रैफिक पे आप नहीं कर पा रहे, तो लोड तो आप क्या करते हो, 2 लेन का ट्रैफिक बना लेते हो, फिर 4 लेन का बनाते हो, पर ये इट इज़ नॉट अ वायबल सॉल्यूशन। अगर बहुत सारा ट्रैफिक बढ़ गया, क्या आप 1000 लेन का रोड बना दोगे? इट इज़ नॉट वायबल सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया, मल्टी लेयर स्टोरिंग कर दिया, एक लेयर उसके ऊपर ब्रिज, उसके ऊपर ब्रिज, उसके ऊपर ब्रिज, स्पेस एक ही है, पर आपने क्या कर दिया, पैरेलल प्रोसेसिंग कर ली, तो आपने ट्रैफिक को मैनेज कर लिया। आपके पास लाइन तो लिमिटेड है ना, ये डायरेक्शन आपके लिमिटेड थोड़ी है, तो कितना भी किलोमीटर ऊपर जा सकते हो। 3 लेयर ब्रिज बन गया अपने इंदौर में, बन गया, फिर 4 लेयर ब्रिज बन जाएगा, फिर 5 लेयर बन जाएगा, 6 लेयर बन जाएगा, जितना बनाना बनाओ, आप मैनेज कर सकते हो, स्पेस मैनेज कर सकते हो। तो दैट इज वही डिफरेंस था दोनों में। CPU इज वेरी स्लो, सीक्वेंशियल डेटा को जा रहा है, सीक्वेंशियल मतलब एक कार गई, अगर सिंगल लेन का रोड है, एक कार गई उसके पहले, उसके बाद दूसरी कार गई, तो ये सब कारें इसी रोड पे चलेगी। और जो फर्स्ट कार है वो हमेशा फर्स्ट पहुंचेगी, और जो लास्ट कार है वो हमेशा लास्ट में पहुंचेगी। इट इज सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग है। कोई कार एक दूसरे को ओवरटेक नहीं कर सकती, बिकॉज नीचे समुद्र है, कोई ओवरटेक करने जाएगी तो क्या कर जाएगी, गिर जाएगी नीचे, नेट से डिलीट हो जाएगी। तो दैट इज टू बी CPU। CPU की सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये थी, तो उन्होंने बोला कि चलो हम पैरेलल दो बना देते, 2 रोड बना देते, ताकि एक कार ओवरटेक करके आगे निकल जाए, किसी को जाना हो आगे। तो 2 भी सफिशिएंट नहीं हुई, इनको लगा फिर 3 बना लेते हैं, 4 बना, पूरा समुद्र ही आप रोड से बना दोगे तो फिर कैसे चलेगा। तो दे कम अप विद द न्यू टेक्नोलॉजी, दैट इज टू बी एनवीडिया 2012 में आया, उसने पूरा वर्ल्ड का सिनेरियो चेंज कर दिया, और आज सबसे बड़ी कंपनी है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है एनवीडिया, जो कि सबसे ज़्यादा चिप बनाती है, GPUs, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट बनाती है, ग्राफिक्स को प्रोसेस करती है। ग्राफिक्स मतलब इमेजेस को प्रोसेस करती है, वीडियोस को प्रोसेस। अपने मोबाइल में भी सबके पास में GPUs है, हर मोबाइल में GPUs होगा, तो बहुत सारे GPUs लगे हुए हैं। तो GPUs इज यूज फॉर द ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, और ग्राफिक्स को प्रोसेस करना है तो यू नीड अ पैरेलल प्रोसेसिंग इंस्टेंट ऑफ द सीरियल प्रोसेसिंग, तो इसलिए हमने इस पे लाए। और बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, हम बताएंगे। ये चिप का कोर एरिया है, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, पर अगर हम देखना चाहें तो इस पर चलता नहीं शायद मार्कर, तो मार्कर से चल जाएगा, मार्कर से हो सकता है, नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये सब कोर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 प्रोसेसर बैठे हुए हैं, ये सब इस मेमोरी को शेयर कर रहे हैं। मेमोरीज, कैश मेमोरीज, प्राइमरी मेमोरीज, सेकेंडरी मेमोरीज, हार्ड डिस्क, बहुत सारी मेमोरीज के लेवल्स होते हैं आजकल। तो ये एक मेमोरी को शेयर कर रहे हैं, फिर मेमोरी कंट्रोल लगा हुआ है। ये चिप था, जो ट्रेडिशनल चिप की बात कर रहे थे वो था, आजकल चिप पूरा चेंज हो गया है। अगर वही बात कर रहे हैं, अगर एलेक्सनेट को हम 10 साल पहले आ जाता एलेक्सनेट, CPU के समय आ जाता एलेक्सनेट, तो एलेक्सनेट में आपको 355 GPUs लगते, 1 साल लगता आपको ट्रेन करने में, 355 GPUs को आपको ट्रेन करना पड़ता। अगर चैट GPT, आपको जो GPT-3 यूज़ कर रहे हैं वो एलेक्सनेट पे अगर आप डालते हैं तो इतना आपको कैलकुलेशन करनी। 175 बिलियंस पैरामीटर्स हैं, 3 × 10⁻23 फ्लॉप्स मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड्स, इतने ऑपरेशन करने पड़ते हैं आपको ट्रेन करने के लिए। इतना US डॉलर्स है, इतना कार्बन प्रिंट है, इतना हाउस और इतना किलोमीटर कार चल जाएगी। तो अगर आपका चैट GPT 10 साल पहले अगर कोई डेवलप कर लेता GPUs पे, तो वो इतना महंगा पड़ता आपको, इसलिए नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हार्डवेयर नहीं था, इसलिए हमारी इंपॉर्टेंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की इसलिए इंपॉर्टेंस है। नया हार्डवेयर अगर GPUs नहीं आता तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो ग्राफिक को प्रोसेस कर पाते। हम वही पुराने ज़माने में रहते, हम 16 कोर की जगह 32 कोर बढ़ा लेते, हम रोड बना देते, पर रोड की एक लिमिट होती, उससे ज़्यादा जितनी रोड बढ़ाओगे उतनी मेमोरी बढ़ानी पड़ेगी, कितना बढ़ाओगे। तो हमारा रोल है इंपॉर्टेंट, हम आर्किटेक्चर इंजीनियर है, हम विले से इंजीनियर है जिन्होंने नया आर्किटेक्चर बनाया, दैट इज़ कैपेबल टू परफॉर्म द प्रोसेसिंग। और आजकल केवल GPUs भी आउट हो गए, आजकल तो बहुत सारी नई प्रोसेसिंग आ गई, हम बताएंगे आगे क्या क्या प्रोसेसिंग है। अब ये तो अब हो सकता है कोई आंसर दे पाए, why did it take 30 years for DNN to become useful? Because computer was slow, the loss function wasn't accurate, the CNN wasn't invented yet, और training data was insufficient. स्लो था, सबसे पहले तो हमने बता ही चुका हूँ, स्लो था। उसके साथ साथ एक और चीज़ थी, इसलिए DNN और LNN या फिर AI नहीं आ पाए, क्योंकि हमारे पास डेटा सेट्स बहुत कम थे। जियो आया था ना, आपने जियो का सुना है सभी ने? फ्री सिम दिया था, तो आप तो बहुत छोटे होंगे शायद से, ली थी आप लोगों ने फ्री सिम? हाँ, फ्री ली थी। तो कितने साल तक, 2 साल तक फ्री थी। तो क्यों फ्री थी पता है आपको?
वो इसके लिए थी, टू क्रिएट ए ट्रेनिंग डेटा, क्योंकि मॉडल लाने वाले थे। पर कोई मॉडल कितना एफिशिएंट होगा वो डिपेंड करता है कि उसके पास कितना डेटा है, ट्रेनिंग डेटा सेट कितना बड़ा है। अगर मैं मॉडल ये 5 बच्चों पे कोई मॉडल डेवलप करूँ तो ये मॉडल की एक्यूरेसी बहुत ज़ीरो होगी। अगर मैं इसी मॉडल को 50 लोगों पे करूँगा तो और एक्यूरेसी बढ़ेगी, है ना। अगर मैं 5 को बोलूँ कि इन 5 को बेस पे मैं एक फेज लॉकिंग अनलॉक सिस्टम बना देता हूँ, तो 5 में से छठा आ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी उसकी, क्योंकि 5 के फीचर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होगा। पर ये 1000 लोगों के फीचर्स में करके और डिफरेंशिएट करने पाऊंगा, मुझे पता लग जाएगा कि यहाँ पे मेन डिफरेंस आता है। तो डेटा सेट इज़ रिक्वायर्ड। और डेटा सेट कब आना शुरू हुआ आपके पास? जब आपके पास फ्री मोबाइल डेटा आया। पैसों खर्च में करने में तो हम कुछ नहीं कर सकते। जब जियो ने फ्री मोबाइल दिया हमको, डेटा फ्री दिया, तो हमने क्या किया, हम उसका भरपूर यूज़ किया। जब हमने भरपूर यूज़ किया तो उसने हमारा यूज़ किया, उसने पूरा डेटा सेट ही बना लिया कि आप क्या शॉपिंग करते हो, आप क्या मूवी देखते हो, आप क्या करते हो। फिर जियो कनेक्शन आ गया, जियो के सर्वर भी आ रहे हैं बहुत बड़ा। जियो का बहुत बड़ा डेटा सेंटर शुरू होने वाला है मुंबई में, और वो भी अंडर द सी, बाहर भी नहीं, समुद्र के अंदर। वर्ल्ड तो नहीं, एशियाज बिगेस्ट डेटा सेंटर जो जियो डेवलप कर रहा है इंडिया के लिए। और वो किस पे डेवलप कर रहा है? वो आप सबके डेटा जो खर्च किया उसी पे कर रहा है। आप सबने जो फ्री में डेटा का एंजॉय किया वो ये यूज़ कर रहा है। तो डेटा सेट बनाने के लिए, मशीन लर्निंग बनाने के लिए आपको डेटा सेट चाहिए। डेटा सेट के लिए आपको बहुत बड़ा डेटा सेट चाहिए। इसीलिए चाइना ने सबसे पहले ChatGPT और ये सब बना दिया। DeepSeek सुना है ना उनका? हमारे ChatGPT से ChatGPT किसने बनाया? हमने तो नहीं बनाया। किसने बनाया? US ने बनाया। US के पास डेटा सेट होगा क्या? उसकी तो पॉपुलेशन ही इतनी नहीं है जितनी तो हमारी पॉपुलेशन है। तो चाइना ने अपना डेटा सेट डीप शाख है इसलिए अच्छा डेवलप किया क्योंकि उनका डेटा, उनकी पॉपुलेशन हमारे से ज़्यादा है ना। जितनी पॉपुलेशन होगी उतना डेटा सेट से, तो उन्होंने उसको पॉजिटिव लिया कि भैया सब लोगों को फ्री में मोबाइल दो, सब लोग यूज़ करेंगे, हमारे पास डेटा सेट बढ़ेगा। जब डेटा सेट बढ़ेगा तो हमारे पास मॉडल और एक्यूरेट होगा। जितना बड़ा डेटा सेट उतना मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो मॉडल की एक्यूरेसी या ट्रेनिंग डेटा के लिए हमें क्या चाहिए? हमें डेटा चाहिए। वो डेटा कहाँ से मिलेगा? जब तक पॉपुलेशन नहीं होगी तब तक मिलेगा। आज भी हम डेटा हमारे पास, हम मतलब मुझे तो पता नहीं, पर पूरी दुनिया में बोलते हैं सबसे जो सस्ता नेट है वो इंडिया में है। तो सस्ता नेट इसलिए नहीं है कि इंडिया में है, इसलिए सस्ता है क्योंकि आपका डेटा सेट इंपॉर्टेंट है उनके लिए। आजकल वो अमेजन डेवलप कर दिया है, आपको पता है? अमेजन पे आप जब जाते हो तब वो डीप एल आपको बता देता है कि भैया कल आपने परचेस किया तो आदमी को ये दिखाऊंगा तो परसों परचेस करने लग जाएगा। और बात ये भी सोचोगे, अपने दिमाग में सोचोगे मुझे ये खरीदना है, तो आपकी वेबसाइट पर वो दिखने लग जाता है साइट में। तो उसको थोड़ी समझ में आता है कुछ। इट इज़ DLL, डीप न्यूरल नेटवर्क। तो ये सब आपसे सीख रहे हैं और आपको बता रहे हैं। आपने एक बार कोई गलती से कोई किसी साइट पे क्लिक कर दिया कि मुझे खरीदना है, तो आपको 10 दिन तो रोज़ परेशान करता ही रहेगा। तो इट इज़ DLL, आपकी कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, उससे मॉडल डेवलप हो रहा है, मार्केट डेवलप हो रहे हैं। बड़े बड़े शेयर्स, आजकल शेयर्स के बहुत सारे ऐप आ गए हैं जो आपको बताते हैं कि आप ये शेयर खरीद लो, कल तक तो आप लखपति बन जाओगे। तो डेटा सेट चाहिए ना आदमी को लखपति बनाने के लिए, तो पता होना चाहिए कि कौन सा शेयर खरीदूँ मैं 1000 में से। वो एक डेटा सेट पर ट्रेन करके दे देगा तो उस पर क्या होगा उसको पता ही नहीं लगेगा। तो डेटा सेट इज़ रिक्वायर्ड। मतलब अगर हमें DNA बताना है तो हमें 2 चीज़ चाहिए। एक तो चाहिए कि कंप्यूटर फास्ट होने चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए? डेटाबेस बहुत बड़ा डेटाबेस होना चाहिए, ह्यूज डेटाबेस होना चाहिए। अब ये मैं बता रहा था आपको स्पेशलाइज हार्डवेयर। अब वो जमाना गया जब एक CPU सारे काम कर देता था। अब अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग हार्डवेयर हैं, डेटा सेंटर्स हैं। सबसे जो फर्स्ट पिक्चर है डेटा सेंटर्स हैं जहाँ पे TPUs, FPGA और GPUs यूज़ हो रहे हैं। TPUs टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट है, गूगल का है। गूगल का डेटा सेट बहुत बड़ा है। गूगल सर्च इंजन सुना है? तो उसका डेटा सेट है जिसका डेटा सेंटर है। आप तो सोचते भी नहीं, जब सर्च इंजन में हम लिख देते हैं कि ये ढूंढो तो कहाँ गई होगी पिक्चर और कहाँ से वापस आए होंगे उसके आंसर्स, तो डेटा सेंटर से आया। तो डेटा सेंटर्स के लिए जो स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर डिज़ाइन किए हैं, आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया, दैट इज टू बी TPU टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। अब बताएंगे टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है। FPGA होता है, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज, ये भी फास्ट होते हैं। फिर GPUs होते हैं। GPUs ऑब्वियसली डेटा सेंटर में लगते हैं पर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, आजकल TPUs ही यूज़ हो रहे हैं। फिर आप जो हेलो सीरी बस सब करते हैं उसको बोलते हैं NPU, नेशनल प्रोग्रामिंग यूनिट्स। उसके लिए अलग प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब इस प्रोसेसर में हमारे मोबाइल में NPU लगे हुए हैं, सभी के प्रोसेसर में लगे होंगे। स्नैपड्रैगन का आप देखिए, क्वालकॉम का है स्नैपड्रैगन, कुछ लोग बोल रहे हैं स्नैपड्रैगन एंड क्वालकॉम दोनों एक ही है। कैटेगरी पर डिपेंड करता है कि आपने कौन से कैटेगरी का मोबाइल खरीदा है, किस फ्लैगशिप का मोबाइल खरीदा है और कितना फैब्रिकेशन उसका अच्छे से हुआ है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 855 प्लस जो बहुत सारे मोबाइल्स में लगा हुआ है, ये शायद से एप्पल मोबाइल का है और ये NPUs है। ये नेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इसको प्रोसेस करता है, तो आप जो बोलते हैं वो सबको डिकोड करता है। देन अगर हम कार बनाएंगे तो ना तो TPUs काम आएंगे, ना FPGA काम आएंगे, ना NPU काम आएंगे। उसके लिए मुझे नया आर्किटेक्चर चाहिएगा। ये आर्किटेक्चर बनाया है सबसे फेमस अभी जो चल रहे हैं, एलन मस्क।
FSD जो बना हुआ है उनका आर्किटेक्चर बना हुआ पूरा, फुल्ली स्केल डेवलपमेंट किया है उसको, सबसे नीचे वाला। एक Xavier जो था ये तो इसका ही पार्ट है, NVIDIA का ही नया बनाया उन्होंने ऑटोमेटिव व्हीकल्स के, ड्राइवरलेस कार के लिए। देखो कार में कितने सारे कैमरा लगे हुए हैं, देखो यू कैन काउंट दैट कैमरास, इतने सारे सेंसर्स लगे हुए हैं उसको ड्राइवरलेस कार बनाने के लिए। तो आजकल जो दुनिया है वो GPUs CPUs सबसे बियॉन्ड है। न्यू आर्किटेक्चर प्रपोज करो। अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी आपने माइक्रोसॉफ्ट सुना है? माइक्रोसॉफ्ट का बिंज यूज़ करते हो? सेम ऐसे गूगल है, बहुत एग्रेसिवली आ रहा है नया मॉडल्स लेके। तो इट इज़ वो नया ही आर्किटेक्चर प्रपोज करता है, दैट इज़ ब्रेन वेव आर्किटेक्चर्स। उनका आर्किटेक्चर और परफेक्ट आर्किटेक्चर, वो बोल रहे हैं कि बहुत परफेक्ट आर्किटेक्चर है ब्रेन वेव आर्किटेक्चर। तो जब तक आप हार्डवेयर नया नहीं बनाओगे तब तक आप कितनी भी बड़ी बड़ी एल्गोरिथम लिख लो, देयर इज़ अ पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट। हार्डवेयर ही उसको आगे पिकअप करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का रोल उतना ही है जितना कि एक सॉफ्टवेयर लिखने वाले का रोल है इन AI और मशीन लर्निंग में। अभी कितना टाइम बचा है उस हिसाब से अपन आगे बढ़ें। 1:39 हुआ है, ब्रेक ले लें? सबको ब्रेक चाहिए? क्योंकि हम क्या हैं, हम AI होते तो क्या होता, हमें ब्रेक की जरूरत, मशीन हैं हम तो, हमें जरूरत ना लाइट की ज़रूरत है, ना ब्रेक की ज़रूरत है, ना खाने की ज़रूरत है, बस काम करते रहो दिन भर। ऐसा नहीं कर सकते हम ब्रेक ले लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, तो क्योंकि आजकल क्या है कि कोई यूनिवर्सल आर्किटेक्चर नहीं है जिसको हम फॉलो करें और उस पर हम पूरा सिस्टम बेस्ड कर दें। तो अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन वेरियस आर्किटेक्चर्स आर देयर। तो जैसे बहुत सारे आर्किटेक्चर्स हैं, आपने बताया TPUs, FPGAs, GPUs, A12 Bionic, 855+ NPU के लिए, एक Xavier है, FSD फुल स्केल डेवलपमेंट है। तो सभी चीज़ों के लिए अलग अलग आर्किटेक्चर्स, अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग आर्किटेक्चर है, क्योंकि सबकी एप्लीकेशन नीड्स भी अलग है। कोई वीडियो को प्रोसेस कर रहा है, कोई इमेज को प्रोसेस कर रहा है, कोई वर्ड्स को प्रोसेस कर रहा है, कोई लैंग्वेज को प्रोसेस कर रहा है। तो क्यों एक सिंगल प्रोसेसर जो है वो सारी चीज़ों को एकोमोडेट कर पाए या सॉल्व कर पाए, इट इज़ डिफिकल्ट। तो अलग अलग प्रोसेसर, अलग अलग यूनिट्स, अलग अलग आर्किटेक्चर्स आए। अब थोड़ा सा आर्किटेक्चर की बात भी कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हार्डवेयर टाइप्स जो होते हैं वो जनरल पर्पस स्पेशलाइज्ड हैं। जनरल पर्पस हार्डवेयर्स में GPU CPUs हैं, जो किसी भी प्रोग्राम्स के लिए, GPU जनरली ग्राफिक्स प्रोग्राम्स के लिए, और अगर हमें सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग करनी है तो CPUs यूज़ होते हैं। पर अगर कुछ स्पेशलाइज हैं तो जिसमें मेन स्पेशलाइज में दो तरीके के हार्डवेयर्स पे काम करते हैं, वन इज़ FPGA और सेकंड होता है ASICs। तो हमारा जो रोल है VLSI इंजीनियर का वो यहाँ पे आता है। तो हमारे पास दोनों एक्सपर्टीज़ है, हम FPGA बोर्ड्स पे भी कुछ सिस्टम डेवलप करते हैं और कुछ फिक्स लॉजिक्स पे बनाते हैं। ASICs जो हमने चिप बनाई है वो ASIC है, उनको बोलते हैं ASIC, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स। वो किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए बनाई गई है। FPGA जो है वो जनरल बोर्ड्स हैं, उस पर आप कुछ प्रोग्राम डंप करिए, फिर आपको लगता है कि नहीं ठीक नहीं चल रहा तो वापस से रीलोड कर दीजिए, उसको रीप्रोग्राम कर दीजिए। तो FPGA में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। पर ASIC एक बार चिप बन के आगे उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको टेस्ट करना है बस उसको। तो दोनों जो हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं, और VLSI प्रोग्रामर जो है, VLSI डिज़ाइनर्स हैं, उनका जो मेन रोल है वो इन्हीं सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए। अब जो टूल्स दिखाया अपना सिनॉप्सिस और कैडेंस, तो सिनॉप्सिस जो है वो फुलफ़िल करता है FPGA बोर्ड्स वाले फ्लो को, और कैडेंस जनरली फुलफ़िल करता है ASIC वाले फ्लो को। तो जब हम ASIC बनाने की बात करते हैं तब हम कैडेंस की बात करते हैं। तो कल हम जो सीखेंगे वो ASIC सीखेंगे। FPGA तो बहुत ईजी है, हम देख लेंगे, टाइम मिलेगा तो हम FPGA बोर्ड की बात कर लेंगे। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि पुराने आर्किटेक्चर्स में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम था, तो वॉन न्यूमैन सुना होगा आप लोगों ने, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर सुना होगा। तो इट इज़ एग्जांपल ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, जहाँ पे कि प्रोसेसर यूनिट है और एक मेमोरी यूनिट है। तो क्या होता है कि जब भी प्रोसेसर को कोई प्रोसेस करना होता है तो वो किसके पास जाता है, मेमोरी के पास जाता है। जैसे हम अगर कोई प्रोग्राम लिखते हैं, मान लीजिए मूव A, B, सिंपल सा इंस्ट्रक्शन, ASIC इंस्ट्रक्शन है कि मुझे कोई डेटा है वो B रजिस्टर से A रजिस्टर में मूव करना है। तो B, A मतलब पहले मुझे B के रजिस्टर का डेटा लेना है तो मुझे मेमोरी के पास जाना पड़ेगा। पहले तो मूव मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ मूव। MOV मतलब प्रोसेसर को कैसे समझाऊं कि मूव करना है मुझे डेटा या मुझे कॉपी करना है डेटा। तो एक इसका ASIC कोड होगा, इसका बाइनरी कोड होगा, उस कोड से वो समझता है कि यार मुझे मूव करना है डेटा। तो मूव करना है तो मुझे 2 रजिस्टर चाहिए, तो फिर मेमोरी के पास जाता है, पूछता है कि B रजिस्टर कहाँ है, तो B रजिस्टर लोकेट करो। फिर जाता है मेमोरी के पास, A रजिस्टर का डेटा बताओ। तो देर इज़ अ एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन द CPU एंड मेमोरीज फ्रिक्वेंटली। ये फ्रीक्वेंट एक्सचेंज ऑफ डेटा होता है। अब जो एक्सचेंज ऑफ डेटा होता है तो मेमोरी, द प्रोसेसिंग यूनिट इज़ फास्ट। हम जैसे बोल रहे हैं कि CPU हमने 2 कोर, 4 कोर, 16 कोर, 32 कोर, 64 कोर, 128 कोर्स, हमने नंबर ऑफ कोर्स बढ़ा दी, तो हमने CPU का परफॉर्मेंस बढ़ा दिया, पर मेमोरी पर हमने ध्यान नहीं दिया कि मेमोरी क्या कर रही है।
तो मान लीजिए एक जो मेमोरी सिस्टम है वो आपका 100 गीगाहर्ट्ज़ पे काम कर रहा है, पर आपकी मेमोरी केवल 1 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। अगर 100 गीगाहर्ट्ज़ और मेमोरी 1 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करे तो 99 गीगाहर्ट्ज़ का तो आप बेकार काम कर रहे हो, कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि मेमोरी जब तक डेटा नहीं देगी तब तक आप किसको एग्जीक्यूट करोगे। तो देयर इज़ अ बॉटलनेक फॉर मेमोरी, और उससे ज़्यादा बॉटलनेक है, इनको बोलते हैं फ्रंट साइडेड बसेस, FSB जिसको बोलते हैं। तो FSB जो होती हैं, जो फ्रंट साइडेड बसेस जो मेमोरी और CPU को कनेक्ट करती है, उनकी स्पीड भी कम होती है, उनकी स्पीड भी मेगाहर्ट्ज़, आजकल जो बसेस आ गई हैं वो गीगाहर्ट्ज़ की होती हैं। आजकल इस पर बहुत रिसर्च कर रहा है। अम्बा बस, अगर आपने सुना, अम्बा बस प्रोटोकॉल्स हैं जो कि मेनली यूज़ होता है फॉर सेल्फ ड्राइविंग कार्स में, क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग कार में आप देखिए कि बोनट यहाँ है और ब्रेक यहाँ है, देयर इज़ अ सर्टन डिस्टेंस। बोनट के पास से मुझे आइडेंटिफाई किया कि एक ऑब्स्टेकल आ गया, तो अगर वो बहुत सेकंड लगा देगा, डेटा ट्रांसमिशन में बहुत टाइम लगा देगा, तो ब्रेक कब लगेगा। तो देयर शुड बी अ स्मार्ट एक्शन, बहुत जल्दी हमें एक्शन लेना है, तो उसके लिए वो डेटा, सेंसर से डेटा जो है वो ब्रेक के पास भी तो होना चाहिए कि भैया ब्रेक लगाओ, ब्रेक नहीं लगाओ, एक्सीलेटर बढ़ाओ, क्या करना है आपको। तो दैट कम्युनिकेशन शुड बी वेरी फास्ट। तो आजकल वेरी फास्ट कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं हाई बैंडविड्थ बसेस, उस पर बहुत सारा रिसर्च होता है। तो डिज़ाइनिंग के साथ साथ बसेस का भी बहुत रोल है सिस्टम में। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर था, इसका बॉटलनेक जो था वो ये रोड था, जो बसेस थी, बसेस मतलब वायर्स होते हैं, तो वायर्स को कितनी फ्रीक्वेंसी पे काम करा सकते हैं, जैसे वायर्स हैं, अभी हमारे वायर्स 50 हर्ट्ज़ पे काम कर रहे हैं, इस पर 100 हर्ट्ज़ फ्लो करा दोगे तो वायर सारे जल जाएंगे। वो वायर्स की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से आप बियॉन्ड नहीं जा सकते। तो हमें क्या करना है, तो अगर हमने जो एप्पल फ़ोन का ये एग्जांपल देखा था A12, इसमें नई टेक्नोलॉजी लाए हैं, वो बोलते हैं इसको फ्लिप चिप टेक्नोलॉजी। अब आप ढूंढेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। फ्लिप चिप में क्या होता है कि 2 चिप एक साथ बनी हुई है, ऊपर मेमोरी है, नीचे प्रोसेसर है, दोनों फ्लिप है, एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं। तो देयर इज़ अ नो बसेस, पिंस है, 128 पिंस के साथ प्रोसेसर और मेमोरी दोनों एक दूसरे के ऊपर जुड़े हुए हैं। जब भी उसको डेटा चाहिए तो उसको मेमोरी को कॉल नहीं करना है और बसेस पे डिपेंड नहीं करना है, उसको करना पिंस से डेटा लेना है। तो इसको बोलते हैं फ्लिप चिप टेक्नोलॉजी। केवल एप्पल के पास है, उनका पैटेंट भी है फ्लिप चिप टेक्नोलॉजीज पे, और जो नया लेटेस्ट फ़ोन आया एप्पल का वो फ्लिप चिप टेक्नोलॉजी पे ही है। तो जब आप ऐड भी देखोगे तो ऐड में बताता है, गूगल का ऐड देखा अभी कभी, या एप्पल का ऐड देखा, नया एप्पल का जो ऐड आता, क्या ऐड था उसमें, देखो जब क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तब ऐड आता था कि आदमी बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, फिर दीवार से टकराता है, पसीना आता है, फिर यहाँ से सूख जाता है बहुत जल्दी। तो दैट इज़ अ इवेपोरेशन ऑफ, जो भी जब हम फास्ट प्रोसेसिंग करेंगे तो उस समय एनर्जी कंज्यूम होगी, उस एनर्जी को कितनी जल्दी आप इवेपोरेट कर पाते हो, तो डिपेंड करता है कितनी आप फास्ट कैलकुलेशन कर पा रहे हो। तो उसके ऐड देखेंगे तो उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी रहती है। ऐड में लिखा भी रहता है कि दिस मोबाइल फोन इज डिज़ाइन विद 2 नैनोमीटर्स ऑफ टेक्नोलॉजी नोड्स। तो 2 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी नोड मतलब TSMC के टाइनी ट्रांजिस्टर से बना हुआ है, जिसकी जो साइज़ है वो क्या है 2 नैनोमीटर्स की है। तो ये हम मोबाइल की बात कर रहे थे, ये प्रोसेसर, तो ये आर्किटेक्चर हमारे लिए यूज़फुल नहीं थे, तो कुछ नए आर्किटेक्चर प्रपोज किए उन्होंने। तो मेमोरी एक सॉल्यूशन ये था कि क्यों ना हम कंप्यूटर के अंदर ही मेमोरी डाल दें, मेमोरी से बार बार कम्युनिकेशन करने की जगह हम क्या करें, मेमोरी कंप्यूटर के अंदर ही मेमोरी डाल दें, बार बार कम्युनिकेट क्यों कराना है हमें। तो जब मेमोरी हमने कंप्यूटर के अंदर फिट कर दी तो दिक्कत ये हुआ कि मेमोरी बहुत लार्ज स्पेस चाहिए। मुझे अगर एक इमेज को प्रोसेस करना है तो इट रिक्वायर टू बी 1 गीगाबाइट्स ऑफ मेमोरी। तो 1 गीगाबाइट्स की मेमोरी रख दो, उसके ऊपर प्रोसेसर रख दो, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत एरिया कंज्यूम कर लेगा वो। कितनी मेमोरी रखोगे आप, और मेमोरी जितनी बड़ी होगी वो उतनी स्लो होगी। मेमोरी जितनी बड़ी होगी, क्योंकि मेमोरी मतलब सर्च करना है, मेमोरी मतलब सर्च करना है आपको डेटा को। अगर मेमोरी बहुत बड़ी है तो सर्च उतना हमारा डिले होगा, मतलब उसकी प्रोसेसिंग उतनी स्लो हो जाएगी। तो बहुत बड़ी मेमोरी रख नहीं सकते, तो हमें छोटी मेमोरी रखनी पड़ती है, तो वहाँ पे हमें एज स्मॉल एज मेमोरी रखनी पड़ती है। तो आप देखोगे कि जो कैश मेमोरी है हमारी मोबाइल फ़ोन में या किसी में भी कैश मेमोरी है वो बहुत छोटी होती है। इट इज़ इन, अभी जो आ गई कैश मेमोरी वो तो मेरी 512 किलोबाइट से मेगाबाइट्स की आ रही है। और हमारी जो रैम है इट इज़ टू बी कितनी आ गई, 128 GB की भी रैम आ गई है। तो रैम बहुत बड़ी है, पर कैश मेमोरी हम बहुत बड़ी नहीं रख सकते। अगर कैश मेमोरी बहुत बड़ी रखेंगे तो क्या होगा कि वो उतनी स्लो हो जाएगी जितनी हमारी प्राइमरी रैम है। हार्ड डिस्क तो और बड़ी है, पर और दूर पड़ी है, वो तो 1 टेराबाइट्स की है, तो और दूर है वो। जितना हम बड़ी मेमोरी लेंगे उतना डेटा हमें ट्रैवल करने के लिए टाइम लगेगा, उतना रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो इतना भी नहीं कि हम बड़ी मेमोरी कंप्यूटर के अंदर डाल दें, ये भी वायबल सॉल्यूशन नहीं था। तो और क्या सॉल्यूशन थे उनके पास, तो ये पास्कल है। दो अभी जो लेटेस्ट है इट इज़ वोल्टा टेंसर कोर, और जो पुराना वाला है पास्कल है। पास्कल क्या करता है, ये हम ये सब जानते हैं कि अभी जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इट इज़ नॉट इंटीजर मल्टीप्लिकेशन, इट इज़ नॉट फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मतलब मैट्रिक्स जो नीचे लिखा हुआ है 16 × 16 का 256 मैक पर साइकिल एग्जीक्यूट कर सकता है।
मतलब उसको 16 + 16 मतलब 16 लेयर्स इधर से आती हैं, 16 डेटा इधर से आता है, वो दोनों को मल्टीप्लाई करके एक साथ 256 इंटू पर मिलियंस ऑपरेशंस पर सेकंड कर सकता है, मैक पर ऑपरेशन पर साइकिल कर सकता है। तो ये इनको बोलते हैं टेंसर। टेंसर का मतलब हुआ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो जो जीपीयूज जो गूगल ने निकाला अपना टीपीयू, उसको बोलते हैं टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ कैपेबल टू परफॉर्म द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में डेटा को वो देखता है, हर डेटा को मैट्रिक्स के फॉर्म में देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि जब हम इमेज की बात करते हैं तो किसी भी बड़ी इमेज को आप सिंगल पिक्सल से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आगे एग्जांपल होगा। ये हार्डवेयर हम बाद में देखेंगे। इनको कोई जानता है? एनवीडिया के सीईओ है। तो इट इज़ एनवीडिया के चिप्स के बारे में है। ये एनवीडिया का सबसे पहला है, 2012 में आया था। कैपलर, फिर पास्कल आया। अभी हम बात कर रहे थे इसकी कि कोई इमेज को कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो इमेज जो है, जैसे 3 लिखा हुआ है, इस 3 को आपको क्लासीफाई करना है कि ये 3 है, मशीन को पढ़वाना है कि 3 है। तो सिंगल बिट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये क्या है? एक मैट्रिक्स के फॉर्म में है। मैट्रिक्स के फॉर्म में 3 क्या है? जहाँ जहाँ 3 है तो हमने ग्रे स्केल वाइट स्केल में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहाँ ब्लैक है वो 0 रिप्रेजेंट करेगा, जहाँ वो 1 है, जहाँ पे वो लिखा हुआ है 3, वो क्या करेगा? 1 रिप्रेजेंट करेगा। इसके बीच की कुछ वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो हम हर इमेज को ग्रे स्केल में कन्वर्ट करते हैं और उस इमेज को पिक्सल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम अगर 1 बाय 1 पिक्सल को स्कैन करना शुरू करेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं? इसको मैट्रिक्स टाइम में हम हर पिक्चर को एज ए मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 मैट्रिक्स लिया, दोनों का रिप्रेजेंटेशन कर दिया। मैट्रिक्स को पूरा पढ़ लिया, पूरे मैट्रिक्स को हमने कैलकुलेशन करी। तो इसलिए आजकल जो फेमस है वो क्या है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स कैलकुलेशन को हम बोलते हैं टेंसर। इसको बोलते हैं टेंसर कैलकुलेशंस। तो आजकल जितनी कैलकुलेशंस हैं वो टेंसर कैलकुलेशंस है। अभी हमारे लास्ट टाइम इंटरव्यू में पूछा किसी से कि टेंसर मतलब क्या हुआ, टेंसर का क्या मतलब हुआ? तो टेंसर मतलब मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आजकल हम इमेज पे काम करते हैं, हम आजकल वीडियोस पे काम करते हैं। तो वीडियोस भी फ्रेम ऑफ इमेजेस हैं। तो इमेज पे काम करना बिट बाय बिट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम क्या काम करते हैं? मैट्रिक्स फॉर्म में काम करना चाहिए। तो थोड़ा सा इधर चलते हैं अपन। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि डीप लर्निंग की बात करते हैं, ये वाला, कि अगर हमें कोई 3 लर्न करना है, मतलब ये आइडेंटिफाई करना है कि मान लीजिए 0 से लेकर 10 तक है, कंप्यूटर को मुझे सिखाना है कि हर डिजिट को आइडेंटिफाई कर कि 0 ये दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, 3, 4, 5, 6। तो वो कंप्यूटर कैसे डीप लर्निंग के थ्रू आइडेंटिफाई करता है वो देखते हैं अपन, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। तो हम थोड़ा सा ये देखते हैं। ये हम फीचर एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे थे। इट इज़ फीचर एक्सट्रैक्शन। इसके फेज़ है, इनको हमने एक्सट्रैक्ट किया है। बहुत सारी मल्टीपल लेयर्स होती हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी रिकग्निशन, हम मशीन को सिखाते हैं कि ये एक्टिविटीज़ क्या हैं। ये मतलब रन है, जंप है, बैठना है, उठना है, चलना है, क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है। तो हम ऐसे ट्रेन करते हैं मशीन्स को। दिस डेटा सेट्स आर देयर। ये न्यूरॉन्स होते हैं हमारे। हम यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा एग्जांपल ऑफ, हाँ ये अच्छा है, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि मुझे 9 पढ़ना है। मुझे किसी कंप्यूटर को सिखाना है कि ये अगर फीचर मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? 9। तो अब इतना हमें कितना आसान लग रहा है क्योंकि हमने सब सीखा हुआ है। अब देखिए मशीन के लिए क्या कितना डिफिकल्ट है। मशीन के लिए डिफिकल्ट है कि जो 9 लिखा हुआ है उसने उसको पहले 28x28 मैट्रिक्स के फॉर्म में उसने डिवाइड कर दिया। फिर उसने पिक्सल वैल्यूज़ ली, कुछ ब्लैक पिक्सल्स हैं, कुछ वाइट पिक्सल्स हैं, कुछ ग्रे पिक्सल्स हैं। जो ब्लैक पिक्सल्स है वो तो मुझे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, पर ग्रे और ब्लैक मुझे बता रहे हैं कि वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है मैंने। अब उसको ये बताना है कि 28x28 मतलब कितने एक्शंस हो गए, वो उसके पास 784 पिक्सल्स हो गए टोटल। अब इन 7 केवल 9 को रिकॉग्नाइज करने के लिए इसको 784 पिक्सल पे कैलकुलेशंस करनी है कि सारे पिक्सल की वैल्यू पढ़नी है कि क्या वैल्यूज, उसके बाद वो पता लगाएगा कि क्या वैल्यूज आ रही है उसमें। अब हमने उसको ट्रेन किया। कैसे ट्रेन किया? एक्टिवेशन के थ्रू ट्रेन किया। हमने बताया कि 9 मतलब होगा, मतलब अगर एक सर्कल मिले आपको तो 9 होगा। पर उसको बोला कि सर्कल तो 2 तरह के मिल सकते हैं, सर्कल मुझे 9 पे मिल सकते हैं, सर्कल मुझे 8 पे मिल सकता है। तो 9 और 8 अगर कोई सर्कल मिले मतलब 2 नंबर्स है मेरे पास, या तो वो 9 लिखा हुआ है या फिर 8 लिखा हुआ है। अब 9 कैसे रिकॉग्नाइज करें? सर्कल प्लस ऐसा 1 लिखा हुआ है तो इट इज़ 9, 0 प्लस उसके नीचे 0 लिखा हुआ था इट इज़ 8। अगर 1 तो 4 में भी हो सकता है, तो 1 प्लस ऐसा 1 लिखा हुआ है और ये 3 इमेजेस बनेगी तो उसको हम बोलेंगे 4। तो दिस इज इमेज क्लासिफिकेशन। वो किस तरीके से इमेज को क्लासीफाई करता है। तो केवल 9 को हमें कैलकुलेट करने के लिए ये केवल 0 मतलब ऊपर का जो लोब है वो आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे 784 नंबर ऑफ प्रोसेसिंग करनी पड़ी। 784 पिक्सल पे मुझे पैरेलल प्रोसेसिंग करनी पड़ी, तब मुझे समझ में आया कि लोब है मतलब क्या हो सकता है, ये तो 9 होगा या फिर 8 होगा। अब 9 8 में से 9 है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? तो हमने 0 को रिप्रेजेंट किया
जीरो को भी इतनी इमेजेस का प्लस करके 1 2 3 4 5 6 छः अलग अलग सेगमेंट में बांटा है। अगर ये सेगमेंट की इमेजेस मुझे मिल रही है तो मैं इसको क्या बोलूँगा, इट इज़ अ 9, मतलब लोब है और लोब के नीचे ये नंबर हैं, ये 3, मुझे अगर 3 कंटिन्यूस 1 मिल जाए, मतलब ऐसा पैटर्न मिल जाए तो मैं उसको बोलूँगा कि इट इज़ टू बी अ 9। तो 9 कैलकुलेट करने के लिए मुझे अपर लूप में ये न्यूरॉन्स हैं, मान लीजिए ये फर्स्ट लेयर जो है वो ये लोब क्रिएट कर रही है, ये लोब आइडेंटिफाई कर रही है, सेकेंड जो लोब है वो मान लीजिए ये आइडेंटिफाई कर रहा है, तो ये दोनों मिलके फिर आपको बताएगी कि फाइनल रिजल्ट जो है वो 9 है। तो इसको बोलते हैं हम डीप न्यूरल नेटवर्क। डीप न्यूरल नेटवर्क में 2 लेयर्स होती हैं, फर्स्ट इनपुट लेयर, सेकेंड इज आउटपुट लेयर, इसके बीच में जो होती है उसको बोलते हैं हिडन लेयर्स। हिडन लेयर्स, सारी कैलकुलेशन हिडन लेयर्स पे होती है। इनपुट से तो हम इनपुट देते हैं, आउटपुट से हमें आउटपुट पता लगता है कि क्या मिलेगा, पर सारी कैलकुलेशन क्या होती है वो हिडन लेयर के बीच में होती हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आपके मार्क्स का एग्जाम्पल, ये हमारे यहाँ का एक एग्जाम्पल था, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल था कि मान लीजिए कि हमने एक हमारा नेटवर्क बनाना है, ट्रेनिंग नेटवर्क बनाना है, तो हमने बोला कि x1 x2 x3 आर द इनपुट्स, मतलब हमने बोला कि 3 टेस्ट होते हैं किसी भी, मतलब हमने बोला कि किसी भी स्टूडेंट को आपको पता करना है कि वो सब्जेक्ट में वो कितना एक्यूरेट है, तो हम क्या करते हैं, एक इंटरनल टेस्ट लेते हैं, क्लास मार्क्स होते हैं और इससे एंड सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं। हमने तीनों को बोल दिया, हमने बोला कि तीनों मिला के क्या होना चाहिए, 100 नंबर होना चाहिए। अब मैंने बोला कि जो इंटरनल टेस्ट के मार्क्स हैं वो 30% वेटेज है उसका, मैं जितना भी नंबर लाएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 0.30 से, तभी वो 30% होगा। क्लास मार्क्स है, क्लास के अटेंडेंस के मान लीजिए 10% वेटेज है, तो 0.10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो एंड सेमेस्टर एग्जाम है वो 60% का है, तो क्या करना पड़ेगा, 0.60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने हर इनपुट को अलग अलग फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन किया, इसको बोलते हैं वेट, ये हमारा वेट है। मतलब सबसे ज़्यादा वेट किसका है यहाँ पे, एंड सेमेस्टर एग्जाम का, वो कितना है, 60% है। उससे कम वेट किसका है, क्लास टेस्ट का है। उससे कम वेट कितना है, अटेंडेंस का है। तो हमने ऐसे आइडेंटिफाई किया, तो इसको बोलते हैं वेट, और ये कैलकुलेशंस होती हैं, ये इसको बोला हमने फॉरवर्ड कैलकुलेशन। तो मैंने एक स्टूडेंट का डेटा लिया, उसका कैलकुलेशन करके दिया कि उसके क्लास टेस्ट में इतने मार्क्स से, जितने मान लीजिए 20 मार्क्स है, 20 को मैंने 0.3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया, 2 दूना 6, 6 मार्क्स इस केस में हो गया। अगर उसके 100% अटेंडेंस, 1 मार्क्स उसमें हो गया, 10 मार्क्स उसमें हो गए, और अगर उसके 60 में से 60 आया तो टोटल मिला के उसका इतना नंबर बन रहा है, उसको एक ग्रेड असाइन कर दो। एक केस ऐसा आ गया हमारे पास, एक केस ऐसा आया जिसमें टेस्ट में उसके अच्छे मार्क्स हैं, उसके एंड सेमेस्टर एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स है, पर उसने क्लासेज अटेंड नहीं करी, 0 क्लास अटेंड करी, तो भी उसकी जो ग्रेड है वो इक्विवेलेंट हो गई पहले की ग्रेड के, जिसने थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस किया। अब मुझे क्लास अटेंड करने का वेटेज बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगा, जो 10% का वेट था उसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। तो हमने उसको क्या बैक प्रोपोगेशन करके उसके वेट को एडजस्ट किया। तो न्यूरल नेटवर्क्स में न्यूरॉन, जब डीएनएन की बात करते हैं तब वो भी ऐसे ही करते हैं, एक बार फॉरवर्ड मूव करते हैं, फिर लर्न करते हैं। फिर हमने क्या किया, पहले जो वेट था हमारा 10% का था, मान लीजिए उसको मैंने 15% का वेट कर दिया अटेंडेंस का, तो हमने क्या किया, उसका वेट बढ़ाया। वेट कैसे बढ़ाया, हमने आउटपुट को लर्न करके कि आउटपुट जो है यार वो आउटपुट ठीक नहीं आ रहा है, तो मैंने क्या किया, बैक प्रोपोगेशन किया और उसके वेटेज बढ़ाए। तो हम वेट एडजस्ट करते हैं, जब जितनी बार हम प्रोसेस करते हैं उतनी बार वेट एडजस्ट करते हैं। एक बार ये पूरा मॉडल ट्रेन हो जाता है, फिर हम बोलते हैं कि दिस इज अ परफेक्ट मॉडल। तो उसको ट्रेन करने के लिए आपको इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो ये प्रिडिक्शंस हैं, जैसे मार्क्स हमने दे रखा है, मिड सेमेस्टर का 40% है, क्लास टेस्ट का 40% है, और एंड सेमेस्टर का भी 40% टेस्ट रखा था। फिर हमें लगा कि नहीं है तो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो एंड सेमेस्टर का हमने वेटेज बढ़ा दिया और क्लास टेस्ट का वेटेज बढ़ा दिया, और क्लास का वेटेज बढ़ा गया, 0.3 कर दिया दोनों का। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास अटेंड कर रहे हैं वो बढ़ गए, अटेंडेंस की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, तो वो हमारा मॉडल सक्सेसफुल मॉडल हो गया। तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं डीप न्यूरल नेटवर्क। तो डीप न्यूरल अगर डीएनएन की बात करें तो डीएनएन हार्डवेयर जनरेशन करने के लिए आपके लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यहाँ जितने भी पिक्सल हैं, हर पिक्सल एक हार्डवेयर है, हर पिक्सल एक हार्डवेयर है। हर पिक्सल में एक मैक यूनिट है, इसको बोलते हैं मैक यूनिट है। वो मैक यूनिट एक मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रही है वहाँ पे उस पिक्सल, क्योंकि वेटेज को मल्टीप्लाई करना है आपको इनपुट वैल्यू से, तो उस वेट को मल्टीप्लाई से कैसे करोगे, इनपुट वैल्यू से मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा, मतलब इट इज हार्डवेयर अगेन। तो यहाँ पे हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर किस तरीके से होता है, हार्डवेयर इस टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, जो हमारा न्यूरॉन्स, ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि वही कैपेबिलिटी इस हार्डवेयर में भी आ जाए, कि वो याद रखे चीज़ों को, कैलकुलेट करे चीज़ों को और आउटपुट जनरेट करे। अगर ये कैपेबिलिटी हमने हार्डवेयर से जनरेट कर दी तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा हार्डवेयर है नाउ इट इज़ अ कम्प्लीटली AI इनेबल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसको कोई भी इनपुट देंगे, उस मॉडल को हमने ट्रेन कर दिया, आप कोई भी इनपुट दोगे आप, वो आपको परफेक्ट रिजल्ट बना के देगा। पर इस रिजल्ट को निकालने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा, यू हैव टू परफॉर्म सो मेनी प्रोसेसेस।
और सभी प्रोसेस में इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ हार्डवेयर्स हैं। विदाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ हार्डवेयर्स आप कुछ नहीं कर सकते। अब एक दो स्लाइड्स हो रहे हैं, हम थोड़ा सा फास्ट मूव कर लेते हैं यहाँ से। अब ये स्पीच रिकग्निशन के लिए जैसे बताया कि स्पीच के लिए प्रोसेसर होता है, तो उन्होंने अलग प्रोसेसर ही बना दिया। GPU CPU सबको हटा के उन्होंने नेचुरल इंजन बना दिया। तो ये एप्पल में फ़ोन में है, वो है सिरी और है गूगल जो करते हैं, वो ये सब आइडेंटिफाई करता है कि अगर किसी ने वॉइस कुछ कमांड दी है और मुझे वॉइस से सर्च करना है तो अलग से प्रोसेसर है उसके लिए। GPU अलग प्रोसेसर है जो ग्राफिक प्रोसेसिंग करेगा, CPU अलग है जो डेटा प्रोसेसिंग करेगा, और NPU अलग है जो कि क्या करेगा, नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करेगा। तो नाउ इन अ कंप्यूटर, इन अ मोबाइल फ़ोन वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर्स। सब अलग अलग तरह के आर्किटेक्चर हैं और सबका अपना अपना जॉब है, सबका अपना अपना रोल है। पहले हम एक ही मजदूर से पूरे घर का काम करा रहे थे, वही प्लास्टर कर रहा था, वही टाइल्स लगा रहा था, वही प्लम्बरिंग कर रहा था, तो वो कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता। तो हमने सबको आइडेंटिफाई किया कि उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उसके हिसाब से हमने उसको मोबाइल में किया, क्योंकि मोबाइल इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ AI। अब ये कार के लिए बताया है कि कौन से रिकमेंडेड सिस्टम्स हैं, क्या यूज़ करते हैं। फिर इन्होंने एक सिंपल एग्जाम्पल लेके अपन ख़त्म करते हैं आज यहाँ पे कि अगर हमने जैसे एक बोला द CPU बेस्ड डेटा सेंटर्स हैं, अगर हम बात करें तो इट रिक्वायर्ड टू बी 60 टेरावाट्स, और अगर हम GPU बेस्ड डेटा सेंटर की बात करें तो 2028 की बात कर रहे हैं वो, तो अगर डेटा सेंटर इस तरीके से बढ़ते हैं तो मुझे 850 टेरावाट्स की ज़रूरत है भी। अब डेटा सेंटर की क्यों ज़रूरत है मुझे? अच्छा, डेटा सेंटर की क्यों ज़रूरत है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द यूज़ ऑफ डेटा सेंटर? टू डेटा स्टोर। तो जैसे मैंने कुछ बोला तो उसको स्टोर करके क्या करेंगे अपन? अच्छा, अभी जो हमारे NPUs काम कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन में, किसी ने टेस्ट किया कि जो NPUs हैं वो बिना इंटरनेट के काम नहीं करता? जब हम कोई सर्च करते हैं, सिरी करते हो आप, तो है सिरी बोलते हो, तो वो अगर इंटरनेट नहीं होगा तो वो काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? आप जो भी कमांड देते हो वो कमांड यहाँ से स्पीच से वो टावर पे जाती है, टावर से वो डेटा सेंटर में जाती है। तो हर एक कमांड, हर एक सर्च इज़ रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि डेटा सेंटर बहुत एनर्जी खाते हैं, ये टावर्स बहुत एनर्जी खाते हैं, और इतनी एनर्जी है नहीं अब हम इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दें हमारे पास, क्योंकि हर आदमी कैपेबल है, हर मोबाइल कैपेबल है टू परफॉर्म दिस NPUs, क्योंकि बहुत इजीली अवेलेबल है। तो हम क्या करें, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए इसका? रिन्यूएबल एनर्जी से कर दें। एक एग्जांपल ये है कि एनर्जी रिन्यूएबल लगा दें। और कुछ हम क्यों मोबाइल से सर्च नहीं, अगर हम मोबाइल को इतना कैपेबल बना दें कि वो सारी प्रोसेसिंग कर दे तो हमें जाना ही नहीं पड़ेगा डेटा सेंटर पे, समझ रहे? और हम स्कैटर डेटा सेंटर बना दें, लोकल डेटा सेंटर बना दें। अभी ये जो डेटा सेंटर है, मान लीजिए पूरे हमारे MP का डेटा सेंटर भोपाल में, तो अगर आप इफ़ यू इनिशिएट दिस कमांड हे सिरी, तो वो कहाँ जाएगा? भोपाल से पूछ के आएगा कि यार हे सिरी मतलब क्या करना है। तो इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करें, लोकल डेटा सेंटर्स डेवलप करें। उसके भी जब बजाय आजकल क्या हो रहा है कि दिस मोबाइल शुड बी कैपेबल टू रिकॉग्नाइज दिस इमेजेस, और दिस जो छोटी छोटी प्रोसेसिंग होती है वो खुद रिकॉग्नाइज करे। तो अभी मोबाइल पे बहुत सारा काम हो रहा है कि मोबाइल प्रोसेसर को हम इतना कैपेबल बना दें कि वो इतना कर दे। पर मोबाइल को कैपेबल बनाने के लिए क्या चाहिए हमको? इट रिक्वायर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ बैटरी लाइफ बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। अगर पूरा डेटा सेंटर इस मोबाइल में रख देंगे तो क्या होगा? मोबाइल चलेगा ही नहीं, एक सर्च पे तो मोबाइल ही बैठ जाएगा आपका। तो हमें इनको क्या करना है, इनको पावर एफिशिएंट बनाना है सारी एल्गोरिथम्स को। तो हार्डवेयर्स को पावर एफिशिएंट बनाना, मोबाइल के लिए कैपेबल बनाना। आज पूरी दुनिया इसी बात पे चल रही है कि हम कार के अंदर क्यों हार्डवेयर बना के रखें। कार तो केवल क्या है, 2 मोटर्स हैं और बैटरी है। इसकी बजाय हम एक प्लेटफॉर्म बनाएं, अपना मोबाइल आके अटैच करें और कार पूरी हमारे हिसाब से चलेगी। क्यों हम हार्डवेयर पे रखें? क्यों हम डेटा सेंटर भेज के उसको पूछें कि यार सामने गाय आ गई कि कौन आ गया? हमारा मोबाइल इज़ कैपेबल। तो मोबाइल को हमें आजकल जितना भी रिसर्च है, इट इज़ सभी रिसर्च बन रहा है कि मोबाइल हमारा कितना कैपेबल हो जाए, इसलिए हम अलग अलग आर्किटेक्चर्स मोबाइल में फिट कर रहे हैं। पर जितने हम आर्किटेक्चर फिट करते जा रहे हैं उतना हमें बैटरी पावर बहुत चाहिए। इट रिक्वायर्ड द ह्यूज अमाउंट ऑफ बैटरीज। तो जितना सोर्स ऑफ बैटरी, जितना मोबाइल हमारा इफिशिएंट होगा, पर प्रोसेसिंग के साथ साथ हमें बैटरी भी देनी। प्रोसेसिंग तो हम कुछ भी करा सकते हैं इससे, पर बैटरी लाइफ मोबाइल की मेन इंपॉर्टेंट है। तो जो नया फ्यूचर है वो यही है कि मोबाइल इज़ कैपेबल टू परफॉर्म ऑल दिस फंक्शंस विथ इटसेल्फ। मोबाइल हमारा है, मेरा मोबाइल है, मुझे पता है कि मेरी ड्राइविंग कैपेबिलिटी कैसी है, मेरी विज़न में मुझे मान लीजिए कलर ब्लाइंडनेस है और मुझे अपनी कार चलानी, तो मैं मोबाइल अपनी कार में रखूँगा, वो पूरा सेटअप जो है वो मेरे हिसाब से सेट हो जाएगा। मुझे लगता है कि नहीं यार ये तो मुझे हाईवे पे चलानी है,
तो मेरा मोबाइल है, मैं अपने मोबाइल को प्रोग्राम करूँगा कि हाईवे की तरफ चले, तो देर इज़ अ नो रिक्वायरमेंट ऑफ हार्डवेयर, कुछ ज़रूरत नहीं है, बस स्टेयरिंग की ज़रूरत भी क्या है, वो मोबाइल चलाएगा उसको, आपको बस 4 मोटर चाहिए, बैटरी चाहिए और आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर चाहिए, स्ट्रक्चर पे बैठ जाइए, मोबाइल लगाइए, अपने हिसाब से काम करेगा। अभी आप टीवी पे यही करते, टीवी से मोबाइल, आपने पूरा टीवी छोड़ के मोबाइल पे क्यों आ गए? टीवी पहले सब लोग देखते थे, सबके लिए बनाया गया था, आप मोबाइल पे देखते हो, मेरे लिए इंडिपेंडेंट है। तो हर आदमी आजकल क्या करता है, इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट बनना चाह रहा है। टेक्नोलॉजी मेरे लिए हो, मेरे लिए बने, पर टेक्नोलॉजी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इट शुड बी अ पावरफुल टू परफॉर्म ऑल दिस थिंग्स। और आजकल जो काम है वो वीडियो प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग में बहुत काम होता है, तो TPU GPU के अलावा बहुत सारे आर्किटेक्चर्स हैं, वो मैं आपको एक आर्किटेक्चर बताना भूल गया सर। तो ये चीज़ क्लियर है, इट इज़ क्लियर कि हम मोबाइल पे क्यों कैपेबिलिटी नहीं ला पाए हम डेटा सेंटर की, क्योंकि इट रिक्वायर्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर। तो मोबाइल को आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो लो पावर पे ये सब काम करने लग जाए। तो आजकल सारी चीज़ें इस पर चलने लग गई हैं। एक आर्किटेक्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द फ्यूचर, इट्स अ फ्यूचर ऑफ आर्किटेक्चर, इट इज़ टू बी अ माइक्रोसॉफ्ट अपना ब्रेन वेव बना रहा है इसको, इट इज़ अ ब्रेन वेव काइंड ऑफ आर्किटेक्चर, इट्स कम्प्लीटली रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, कम्प्लीटली पूरा हमारा ब्रेन रिप्लेस करेगा। माइक्रोसॉफ्ट का फ्यूचर प्लान है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO को जानते हो? इंडियन नहीं है, सर्च करिएगा, अभी अभी चेंज भी हो गए। तो ये प्रोजेक्ट है इनका, फ्यूचर प्रोजेक्ट इज है माइक्रोसॉफ्ट ब्रेन वेव। इसमें आप देखेंगे तो अभी हमने जो पढ़ा सारी चीज़ें हैं, डी रैम हमने नहीं पढ़ी, CPUs हैं, QIPs हैं, NICs हैं, FPGAs हैं। तो मोबाइल में फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज, FPGA मोबाइल में लाने की बात कर रहे हैं कि FPGA शुड बी देयर इन मोबाइल फ़ोन, सो दैट अगर डेटा बाईपास करना है तो मोबाइल FPGA खुद ही अपना प्रोसेसिंग करके दे दे, वो GPU CPU तक जाएगी नहीं प्रोसेसिंग। मतलब CPU का जो क्लोन है वो FPGA है। और FPGA की मैंने प्रॉपर्टी बताई कि FPGA क्या है, इट्स अ फील्ड प्रोग्रामेबल, वो अपना बिहेवियर चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन। तो जब उसको लगेगा, जब हमने वॉइस कमांड दिया तब वो NPU की तरह काम करेगा, जब हमें इसको बनाना कि पैरेलल प्रोसेसिंग करो तब पैरेलल प्रोसेसिंग करेगा, जब हम चाहिए वॉइस प्रोसेसिंग करो वॉइस प्रोसेसिंग करेगा। तो इट चेंज इट्स बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशंस। तो दिस इज द फ्यूचर ऑफ मोबाइल फ़ोन, जो कि ये बोल रहे हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट ब्रेन वेव है, अगर ये आर्किटेक्चर सक्सेसफुली रन हो गया तो पूरा मोबाइल का सिनेरियो चेंज होने वाला है, पूरी इंडस्ट्री चेंज होने वाली है। तो दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ मोबाइल फ़ोन, जो कि माइक्रोसॉफ्ट काम कर रहा है। ये लार्जेस्ट चिप है जो उन्होंने बनाई है अभी। ये कुछ स्टार्टअप्स हैं जो कि अलग अलग आर्किटेक्चर्स पे काम कर रहे हैं। ये गूगल के TPUs हैं, ये डेटा सेंटर्स हैं। इसकी इमेजेस पता नहीं क्यों नहीं आई हैं, बाकी बहुत सारी इमेजेस हैं इसमें। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा भी हो गया होगा। अब कल मिलेंगे हम 2 बजे IT में। Thank you so much, sir, for such an knowledgeable session. Now, as a token of love and gratitude, I would like to call Dr. Nitin Jain, sir, to come forward and represent our memento.